नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी, और मेरे साथ हैं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और सब दर्शकों को बता दें कि होपफुली दिस टाइम वी विल नॉट फेस एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। Last time we had to stop the show because there was a technical glitch, as a result of which we had to start again. Right, and right now with us, without any further ado, I think we must go across to our guest from Nagpur, from the BJP. All right, so we have a problem with the guest as well. Today seems to be full of problems. Pradeep ji, today is a problem day. Yes, bilkul sir. Today is a problem day. There is a network problem there. So I don't really know what we are doing over here. We were talking about Sambhajinagar, and we were talking about Ahmednagar. We were talking about how Aurangabad has become Sambhajinagar, how Ahmednagar has become Ahilya Bai Nagar, and I think that's in the fitness of things as well. Because you have to go back to a cultural connect with what India stands for. India has been around for the last 10,000 years. और 10,000 साल पुराना जो इतिहास है आप खत्म नहीं कर सकते, सीधी बात है। I mean, you talk about secularism as one of the pillars of our constitution. But Indian secularism is different, Pradeep ji. Secularism Yes. per se means the absence of religion. In India, there is no question of absence of religion. It means respect for all religions. Exactly. You cannot disrespect Hinduism and always encourage other religions. Now that is not secularism. अभी तक क्या हो रहा है कि हिंदूज को ये कहा जा रहा था कि आप अपनी आइडेंटिटी को आप चुपचाप रखें, आप साइड में रखें। बाकी सबको कहा जा रहा था कि भाई ठीक है, आपको जो कुछ एक्सप्रेस करना है अपने आप करिए। May have worked, at the time when Pandit Nehru was there, Indira ji was there, and maybe later on. But then I think at some point of time, everybody wakes up to the fact that, hey, there is something going wrong. This is not quite right. We need to express our cultural identity in a modern context without losing sight of the past. That's what Hindus are doing right now. And because of that, Hindus are being called what? Right-wing, this, that. BJP is Right-wing being activism, that is what Rahul Gandhi calls, goes outside offshores and talks about the BJP. Ji. Increase of right-wing activism. Ji. Now the right-wing, whenever there is an urge or whenever a politics is in play, because there is a need for that particular thing, the people feel the need for it. That's why it survives and prospers. Here we found Advani's Rath Yatra. It was a success because there was a sense of isolation among the majority community, as you rightfully said. And then Advani was accepted, and BJP, doubled its total seats in the Lok Sabha, Ji. and then ultimately came to power with Atal Bihari Vajpayee being installed there. And then we had another 10 years of lean period for the BJP, and then Mr. Modi coming with very more hardline Hindutva than even what LK Advani believed in, and that succeeded. But if you because remember, the first time that he came to power was in 2014, और उस वक्त मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात करी थी, और ये हर जगह पे ये बात फैला दी गई थी कि भाई 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, ये आएंगे। जबकि एक बार फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि स्विस बैंकों में जो पैसा है, अगर मान लीजिए वापस आ जाए, हम कोशिश करेंगे पूरी उसको लाने की, अगर मान लीजिए वापस आ जाए तो एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकता है। ये नहीं कहा था कि मैं डालूंगा। some people believed it. Not just believed it, Pradeep Majority of the people believed it. Pradeep ji, that a you lot are of going to BJP leaders actually spread that thing कि 15 लाख रुपए आने वाले हैं तुम्हारे अकाउंट में, But at the same time, he never left the hardline Hindutva Yes, agenda. He did not. Even though whenever he talks about 1.4 billion people. Yes. But behind, that this man is a hardcore Hindutva agenda. He runs with a hardcore Hindutva agenda. That is focused his mind along with Ji, development. durust baat. And he is not going to leave it. Sir, it seems to have worked up till now. बिल्कुल सर। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्राइस राइज को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के, अगर यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ कर दें तो ऑपोजिशन के पास कुछ ज्यादा बचेगा नहीं आगे कुछ करने के लिए। Exactly. वेरी फ्रैंकली। Yes, 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 yes. क्योंकि कर्नाटक में जो जीते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के भाई बोल दिया कि जो माइनॉरिटी वोट है उस तरफ चला गया वगैरह वगैरह। देखिए साहब,
बहुत कम माइनॉरिटी वोट है, 13% से भी कम है कर्नाटक में। माइनॉरिटी वोट की वजह से नहीं जीते हैं, सीधी बात है। कांग्रेस जो जीती है वो जीती है प्राइस राइज पर, कांग्रेस जो जीती है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे जीती है, कांग्रेस जो जीती है वो इस बात पर जीती है कि उन्होंने वादा किया है कि गैस सिलेंडर हम लोग 500 रुपए में देंगे, 500 रुपए में देंगे। तो जब इतना सब हो जाता है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड द सेम राजस्थान मॉडल, द सेम कर्नाटका मॉडल अभी वो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ऐलान कर चुका So let's ask the gentleman from the BJP. I think we've got him finally, Mr. Meshram. Meshram जी नमस्कार। नमस्कार 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 मेश्राम जी, कैसे हैं? अरे बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वाह, मीटिंग में थे सर आप बुलाते नहीं। हम नहीं बुलाते, चलिए वो तो आपके पार्टी, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तय करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये सही है, सही। अरे ये अभी हम बात कर रहे थे, प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, अभी अभी आज ही आप लोगों ने घोषणा की है कि अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई नगर होगा। इसके पहले औरंगाबाद का नाम जो है वो बदल दिया गया है, वो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। हम यही बात कर रहे थे कि भाई आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी प्राइस राइस को लेकर, कीमतों को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के और गैस सिलेंडर को लेकर के कुछ कर दे, यानी अगर आप आज वादा करते हैं कि भाई 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर बिकेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कुछ बचेगा। ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग? मेश्राम जी। देखिए सर, डॉक्टर साहब, सच्चाई का सामना हमने करने की जरूरत है। महंगाई का सूचकांक ये कोई भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार अकेली तय नहीं करती। ये वर्ल्ड वाइड जो भी स्थितियां है, चूंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, दुनिया जानती है कि गैस का उत्पादन कहाँ होता है, पेट्रोल डीजल का उत्पादन कहाँ पर होता है। और ऐसी स्थिति में उल्टे माननीय मोदी जी की अपने पूरे कार्यकाल के अंदर में ऐसी कोशिश रही है कि भारत देश की जो भी 148 करोड़ जनता है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा, अच्छे से अच्छे कीमतों में सुविधा और अच्छे से अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किया है। ऐसे स्थिति में अगर झूठ के वादे आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर में जो 5 वादे कांग्रेस सरकार ने किए हैं, उन्होंने तत्वता मान्यता इस प्रकार का अध्यादेश पहली मीटिंग में निकाला। और आज जब एक हफ्ता भर 10 दिन होते आ रहे हैं, जब उसको एग्जीक्यूट करने की, इंप्लीमेंट करने की बातें आ रही है, तो वहां पर वो कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं। तो यह जनता के साथ वादा खिलाफी है। और मैं नहीं समझता कि मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल आप उठा के देखिए, इस देश की जनता के साथ उन्होंने कोई भी वादा खिलाफी अब तक नहीं की। ये बेसिक फर्क कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में आप देखेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो सच्चाई है, उस सच्चाई का सामना करते हुए किस प्रकार से अच्छा काम कर पाएंगे, वही बातें और वादे हम लोगों को देंगे। मेश्राम जी, आपका जो पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड जो है 9 साल का, वो तो सबके पास आ गया है। आप ही ने जो इशू किया बहुत इंप्रेसिव है, मानते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत प्रभावशाली है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि भाई 2 करोड़ नौकरियों का वादा था हर साल का, वो कहाँ है? अभी तक तो नहीं हुआ। किसानों की आमदन को डबल करने का वादा था, वो नहीं हुआ। तो अगर इन्हीं 2 के ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें तो बहुत अच्छा होगा। जी, नौकरी देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं डॉक्टर साहब कि सरकारी नौकरियां का निर्माण किया जाए। जी, नौकरी का मतलब हमने एमएससी में भी काम किया है। एक मिनट मेश्राम जी, आप मुझे डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं? मैं दूर दूर तक डॉक्टर नहीं हूँ साहब। डॉक्टर बजाज साहब एक है, वकील साहब एक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ साहब, सिर्फ बजाज साहब। मैं सिर्फ आरके हूँ। थैंक यू। वकील साहब हैं, वकील साहब हैं। वकील साहब है। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ साहब, दूर दूर तक नहीं हूँ जी। पढ़ाई लिखाई से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है जी। बोलिए ना सर। आप फिर भी आपने अपने क्षेत्र के डॉक्टर ये में लगते हैं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेश्राम जी बताएं। 2 करोड़ नौकरियों का निर्माण का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सरकारी सेवा क्षेत्र में ही उसका निर्माण हो जी। हमने एमएसएमई में काम किया, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम किया। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से नौकरियों का निर्माण, फिर वो सेवा क्षेत्र रहे, सरकारी क्षेत्र रहे, उद्योगिक क्षेत्र रहे या विविध क्षेत्र रहे, ऐसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हुआ है। जितना कि
मल्टीनेशनल कंपनीज में जितनी नौकरियां उत्पादित नहीं की जाती एक साल के अंदर में, उसके कई गुना ज्यादा छोटे क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रों में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नौकरियों का निर्माण होता है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से 148 करोड़ आबादी के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए, उनकी अच्छी जीवन यापन करने के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। उस प्रकार की नौकरियां और उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज वो भी हमने निश्चित रूप से निर्माण की है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर भी जाएंगे तो यह सारी चीजें, अगर आप एमएसएमई का जो मंत्रालय है उसको आप टटोलेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने निश्चित और रूप मेशराम जी से दूसरी बात क्या आएगा। है, दूसरी बात क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, अभी नितिन गडकरी जी से हाल ही में बातचीत हो रही थी, वहां पर भी जो नौकरियां क्रिएट की गई हैं वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हैं। मतलब पूरे देश में जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, अलग अलग जहां पे हाईवे बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रही है, दिल्ली बॉम्बे सुपर हाईवे बन रहा है, और मुंबई दिल्ली का जो सुपर हाईवे एक बार बन जाएगा तो ट्रैवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली विल बी 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच पाएंगे मुंबई से। तो यहां पर भी तकरीबन टोटल 1.5 करोड़ के करीब लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको भी जरा पब्लिसाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेशराम जी, निश्चित रूप से आपका सुझाव और सलाह हमारे लिए कारगर साबित होगी। और आप जानते हैं कि कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक छोटा सा भी काम होता है तो वहां से तकरीबन 26 प्रकार के रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं जी। तो आपने जिस प्रकार से हमारा ध्यानाकर्षण किया है, यह सच है कि हम लोग कई दिशा से हम प्रसिद्धि उस स्टैटिस्टिक्स को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरफ भी हम निश्चित रूप से ध्यान देंगे। गडकरी साहब का जो मंत्रालय है जिस प्रकार से काम कर रहा है, आप देख रहे हैं कि रोज 36 किलोमीटर की, जो कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में 2 किलोमीटर पर डे काम होता था, आज 36 किलोमीटर पर डे जी। नेशनल हाईवेज गडकरी साहब के पोर्टफोलियो के अंदर में बन रहे हैं जी। और जिस प्रकार से गडकरी साहब ने संपूर्ण देश में जहां -26 डिग्री में भी टनल बनाने का काम जो गडकरी साहब के मंत्रालय ने किया है, वह सिर्फ उनकी प्रतिबद्धता, इस देश के प्रति की प्रतिबद्धता दिखाती है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश के 148 करोड़ वाली आबादी वाली जनता के हर आदमी के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके मेशराम जी काम कर रही है। मेशराम साहब, राहुल गांधी जब भी बाहर विदेश जाता है या देश का दौरा करता है या भारत जोड़ो यात्रा करता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन पूरे इंटरनेशनल रिएक्शन आ जाता है। अभी हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में था, आज उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट इन इंडिया, और स्पेशली उन्होंने कहा मुस्लिम्स आर अंडर थ्रेट इन इंडिया। तो यही राहुल गांधी ने यूके लंदन में भी कहा था, ग्रेट ब्रिटेन में भी कहा था। उन्होंने 4 चीज वहां कहा था कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, जुडिशरी एंड बीइंग इंटिमिडेटेड, ऑपोजिशन लीडर्स बीइंग टारगेटेड, जो पिछड़े वर्ग है उनको दबाया जा रहा है। तो आज फिर वही सैन फ्रांसिस्को में लेके उन्होंने कहा, तो क्या यह असर पड़ेगा? बिकॉज कर्नाटका में असर पड़ा है, बिकॉज माइनॉरिटीज के कंसोलिडेशन हो गए थे बीजेपी के खिलाफ, और जो यूजुअली जेडीएस के पास जाता था पूरे कांग्रेस के पास पूरे 14% वोट चला गया। तो आने वाले 2024 तक जितने भी चुनाव हो तो आपको यह दिखेगा कि मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस की तरफ। तो जो राहुल गांधी ने वहां पर बोला सैन फ्रांसिस्को, आप कैसे देखते हो बीजेपी? व्हाट इज बीजेपी रिएक्शन? वकील साहब देखिए, यह वकील साहब हमारे काफी अनुभव रहे हैं, आप भी समझ कर देखते आए हैं। जब भी राहुल गांधी जी देश के बाहर गए, देश छोड़ते से ही उनके दिमाग में एक विशिष्ट प्रकार का कीड़ा काम करता है और वो देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हमने अभी तक के 75 साल की कांग्रेस की राजनीति में देखा है कि उनका जो बेस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलित वोटर से उनके बेस रहा है। आज जो स्टेटमेंट उनका आया है कि जो 1980s में दलितों के साथ में देश में होता था, आज वही अल्पसंख्यकों के साथ में, मुस्लिम भाइयों के साथ में इस देश में हो रहा है। यह सच देखा जाए तो यह इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ नहीं, तो
यह देश विघातक कृत्य करने वाली जैसी बात राहुल गांधी जी अक्सर कहते हैं। जब मोदी जी देश के बाहर जाते हैं, अनेक अनेक देशों में जब भी जाते हैं, आज दुनिया के अंदर में मोदी जी के कार्यकर्तृत्व से और उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर अनेक देशों ने उनको अनेक अनेक प्रकार की उपमा दी। किसी ने बॉस कहा, किसी ने पैर छुए, किसी ने उनको वर्ल्ड लीडर बताया, किसी ने उनको पीस के एम्बेसडर बताया। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिमों के वोटों का आधार लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई थी, जब उनको पता चला कि विविध राज्यों में जब छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो गई, किसी ने उनका दलित वोट लेकर भागा, किसी ने उनका मुस्लिम वोट लेकर भागा, आज उनकी आंखें जरा खुलती हुई दिख रही है। और इसलिए जब उनको ये लग रहा है कि हमारा सारा जो वोट बेस है कांग्रेस का, वो पूरी तरह से छिटक गया है, दूर हो गया है और अभी हम अकेले हो गए, तो ऐसे स्थिति में जब दूर देशों में जाकर इस प्रकार की राजनीति का बखान करना, यह देश विघातक कृत्य ही मैं इस दृष्टि से और हम इस दृष्टि से राहुल गांधी जी के कृति के लिए इस तरीके से देखते हैं। जहां लेकिन तक आप निशांत जी, कर्नाटक की बात करेंगे, जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जहां तक आप कर्नाटक की बात करेंगे, कि हमने और आपने देखा है कि वहां पर जो कल तक मुस्लिम वोट जो जनता दल सेक्युलर के पाले में जा रहा था, वहां पर आज तकरीबन वो जनता दल सेक्युलर का वोट निकलकर उनके पाले से निकलकर कांग्रेस के पाले में जा गिरा। जी। और इतना ही नहीं, तो ज्यादा मजबूती के साथ उन्होंने वोट किया। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की स्थिति है। मुस्लिमों के साथ में कोई खूब न्याय कांग्रेस ने अपने जमाने में किया, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने यह कहा है कि हम तुष्टीकरण की नहीं, सक्षमीकरण की राजनीति करते हैं। इस एक लाइन को अगर हम ठीक से समझे, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी हमारा यह अपील है और रहेगा कि उनको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं, उनको मायूस होने की, सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जब तक वो सक्षम होकर इस देश के जीडीपी में, इस देश के विकास में अपना योगदान देकर मातृभूमि के भावना से काम करेंगे, अपने आप सारे दरवाजे खुलते जाएंगे, ये राष्ट्र बरकत होगा। यही विश्राम साहब, और भाजपा की संकल्पना है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड इज एक्सेलेंट। जो 9 वर्ष टोटल गवर्नेंस, सुपर गवर्नेंस जो मोदी साहब और पूरे बीजेपी के लीडरशिप आजकल पूरे गली गली तक पहुंचाने में संदेश निकल गए हैं। उनका कहना है कि 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर, आर्टिकल 370-35, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान आवास योजना, गैस फ्री शौचालय 11 करोड़, आयुष्मान नल से जल 12 करोड़। बट कांग्रेस का कहना कि यही रिपोर्ट कार्ड लेकर आप कर्नाटक में लड़े, उससे पहले राजस्थान में लड़े, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स डबल इनकम, ये नहीं हुआ। तो मेश्राम साहब कैसे कन्विंस करोगे आप लोगों को? देखिए वकील साहब, देश के राजनीति का और इस देश का भी दुर्दैव मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश करते समय भी हमें जाति के राजकारण और धर्म के राजकारण की ओर हम अभी तक लिपटे हुए, उनसे छूट नहीं पा रहे। 176 प्रकार की योजनाएं मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में दी है। 176 प्रकार की इतनी योजनाएं देने के बावजूद अगर कर्नाटक जैसा स्टेट एक कांग्रेस के पाले में जाने से यह समझने की जरूरत नहीं है कि हमारी योजनाएं कमजोर है या हमारे मोदी जी का कार्यकाल तो लोगों ने स्वीकारा नहीं है। मैंने जैसा कहा कि यह इस देश के धर्म कारण करने वाले, धर्म की आड़ लेकर राजकारण करने वाले पक्षों का ये इस देश के जरा दुर्दैव है। तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत नजदीक आने वाले दिनों में ही अब कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और अभी सिर्फ 15 दिन हुए, महीना भर हुआ, ऐसा मैं समझता हूं, जो 5 वादे उन्होंने किए हैं वो 5 में से 2 वादे या 1 वादा भी अगर पूरे तरीके से कांग्रेस पूरा कर दे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने वादों पर कायम रहेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेश्राम साहब, यहाँ पर जो वादे उन्होंने कर्नाटक में किए हैं वो तकरीबन राजस्थान का जो उनका बजट था तकरीबन वही है। राजस्थान में जो उन्होंने बजट दिया ना, 450 रुपए 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री। असल में अगर देखा जाए वो तो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसी को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। और क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जरा मतलब डामाडोल हो रही है,
तो इसलिए कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है आम आदमी पार्टी के एजेंडा को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे कॉम्बैट करेगी साहब? देखिए, ये अपील तो है इसमें, आप उससे आप इनकार नहीं कर सकते, मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा, कोई फॉल्स वादे नहीं करेगी, कोई झूठे वादे नहीं करेगी, ये नहीं कहेगी कि भाई अगर वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं तो हम 300 में देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इससे आपको लड़ना तो होगा, वो आप कैसे करेंगे वो तो बताएं। देखिए, सच को साथ लेकर जनता के समक्ष जाना, मैं समझता हूं आज समय की जरूरत है। मोदी जी ने और मैंने अभी जिन योजनाओं का जिक्र किया है, आपने अपने संभाषण में जिन बातों को लोगों के समक्ष परोसा रखा है, और अभी देश का मतदाता, युवा मतदाता, जागरूक मतदाता, शिक्षित मतदाता, महिला मतदाता, इन सब चीजों के तरफ पारदर्शिता से देख रहा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता समझ रही है कि पिछले 65 सालों में जो नहीं हो पाया, ये पिछले 9 सालों में मोदी जी ने ऐसी सारी चीजें कर दिखाई है। लेकिन मेश्राम जी, सॉरी आपको रोक रहा हूं, आपको माफ कीजिएगा। एक छोटी आपने महिलाओं की बात करी। हाल ही में हमारी जो महिला पहलवान हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने उनको रोका, मानते हैं पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन थी, और ये लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ कूच कर रहे थे। सबको बोल भी दिया गया था कि भैया बहुत बड़ा फंक्शन है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीइंग इनॉग्रेटेड, आप उस तरफ मत जाइए। उसके बावजूद ये लोग गए। वहां की जो फुटेज है पूरी दुनिया में गई है, पूरे भारत में गई है, और हर जगह पर कांग्रेस का और गैर भारतीय जनता पार्टी के संगठन, गैर भारतीय जनता पार्टी जितने भी संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी महिला पहलवानों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में ये सोचती है। अब इसके बारे में आप क्या करेंगे मेश्राम साहब? देखिए बजाज साहब, इस देश का संविधान अपने स्वयं में कहता है कि 100 आरोपी छूट जाए चलेगा, पर एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। पर ये निरपराधी है कि नहीं, ये तय कौन करेगा? यह संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। यह मेरी जो बहनें हैं, महिला पहलवान हैं, मैं उनका संपूर्ण रूप में आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, पर जब तक कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन नहीं होगा, यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक के कोई भी दोषी है या हम तय करने के मापदंड हमारे पास में क्या है। लेकिन मेश्राम जी, वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं सर, आप अलग बात कर रहे हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ज्यादातर अभी तक देखा गया है, आदरणीय अमित शाह जी और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कोई भी क्राइसिस होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो 10 कदम आगे चलते हैं, हमेशा अभी तक देखा गया। यहां पर आपको लगता नहीं है कि ये जो महिला पहलवान जो हैं, हमारी जो रेसलर्स हैं, इनके साथ किसी ऐसे शख्स की बातचीत कराई जाए जिसको वो ट्रस्ट करती हों, और आराम से, आखिरकार हमारी बच्चियां है ना, ये तो देखिए साहब, पाकिस्तान से तो नहीं आई है ना, हमारी इंडियन ही है ना सब, देयर आर गर्ल्स, दे वन मेडल्स विद अस। प्रधानमंत्री जी के घर में जाकर के इन्होंने, वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर खिंचवाई है मेडल जीतने के बाद। मेरा यह कहना है कि किसी भी ऐसे शख्स को डेजिग्नेट कर दिया जाए बीजेपी द्वारा कि भाई आप जरा इनसे बात कीजिए, मान जाएगा हर एक कोई, क्योंकि पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन होने वाली है, हरियाणा और यूपी के बीच में, वहां पे गड़बड़ चल रही है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है ब्रिजभूषण जी के खिलाफ जो भी हो रहा वो अलग बात है। मेरा यह कहना है कि कोई उनसे बात क्यों नहीं कर रहा, कोई ऐसा शख्स बात करे जिनको वो ट्रस्ट करती हो। बजाज साहब, दिक्कत इसी बात की है जी कि पहल तो हो रही है सरकार के तरफ से और पार्टी की तरफ से जी, लेकिन आपने देखा रहेगा कि जो किसानों के बिलों के समय के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जो नेता शामिल थे जी, आज वही ताकतें, वही नेता इन लड़कियों को, इन बच्चियों को, इन बहनों को, मेरे पहलवान लड़कियों को सामने रखकर उसी प्रकार के आंदोलनों को यहाँ पर इन्होंने लाया खड़ा किया है जी, दिख तो रहा है। किस प्रकार से बात होगी? बात करने के ये सिर्फ, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ चेहरे है। अगर आंदोलन पहलवानों का है तो पहलवानों ने ही बात की, अपने आंदोलन के साथ में पहल करनी चाहिए। लेकिन यह जो आंदोलन है
इन्होंने अपनी दिशा छोड़ दिया है। इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए हैं वो लोगों की विश्वसनीयता नहीं है, और वो लोग पूरे तरीके से सरकार के खिलाफ में बात करेंगे। हम कोई भी तरह की पहल करेंगे, कोई भी प्रकार से आगे जाएंगे, हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, तब भी वो लोग हमारे कदमों के तरफ में पॉलिटिकल नजरों से देखेंगे। ऐसे स्थिति में बजाज साहब कोई भी तरीके से बातचीत होने की संभावना नजर मुझे आज अभी तक नहीं लग रही है, लेकिन आप विश्वास रखिए, निश्चित रूप से फिर भी सरकार है, ये बेटियां हमारी है, सरकार अपनी है, मोदी जी उनके हैं, वो मोदी जी के हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्द ही Because इसमें this भी can- हल निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसे ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुई थी, आपको याद होगा अन्ना हजारे की, जिसकी वजह से कई बहुत लोग कहते हैं, और अगर विश्लेषण भी किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो आगमन हुआ 2014 में, उसका अगर ओरिजिन आप देखें, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो थी अन्ना हजारे की, उसके द्वारा शुरू हुआ इफेक्टिवली। तो कहीं ये आंदोलन इतना ज्यादा तूल ना पकड़ ले कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाए या केंद्रीय सरकार को मुश्किल हो जाए इसको कंट्रोल करने में। मेरा सिर्फ यही सजेशन है। प्रदीप जी, ये महाराष्ट्र में कैसे देखते हो आप? बिकॉज रेशियो तो वोट शेयर तो आपके फेवर में जा रहा, बिकॉज आप नागपुर से थे, बाई इलेक्शन नागपुर में हार गए, अमरावती में हार गए, और जो तीनों मिलके जिस प्रकार से एमवीए का वोट शेयर करीबन 48 to 50% तक जा रहा है, और जो भी एनालिसिस आ रहा है, जो भी फोरकास्ट आ रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि बीजेपी माइट नॉट डू वेल, मेश्राम साहब, इन महाराष्ट्र। तो भले फडणवीस जी और एकनाथ जी ने जबरदस्त फार्मर स्कीम कल के कैबिनेट में अनाउंस कर दिए, 1 रुपए में इंश्योरेंस, बीमा, फिर क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स, एजेंडा सब अनलीश किए, बट जहां तक वोट शेयर है, मेश्राम साहब, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्या कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे हो इस चीज को ओवरकम करने के लिए? हम सच बात तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है आजकल कि 41%, 42% या फिर सर 50% आघाड़ी का 50% प्लस एमवीए आघाड़ी का जो भी वोट प्रतिशत बताया जा रहा है, उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। देखिए, आप जब किसानों के साथ में, ग्रामीण खेड़ों में, दलितों में, ऐसे लोगों में जाकर बात करेंगे, तब मोदी जी का कार्य, देवेंद्र जी फडणवीस जी का कार्य और हमारा जो शिंदे साहब का जो कार्य है वो आपके समझ में आएगा। ये सैंपल साइज पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार काम नहीं करेगी। काम करेगी तो असली लोगों के लिए काम करेगी। आज देखिए, केंद्र सरकार के ही आधार पर 6,000 रुपया प्रति किसानों के खाते में देवेंद्र जी सरकार ने, फडणवीस सरकार ने और शिंदे सरकार ने डाला है। 1 रुपया किसानों को 1 रुपया में बीमा दिलाया है। तो जब ये सारी चीजें हो रही है, उद्योग जगत में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जो स्थितियां है राजनीति में, वह स्थितियां कल तक नहीं रहेगी, और जहां तक बात एमवीए की रहेगी, 3 पार्टियों की, तीनों जिनके हाथों में हाथ नहीं है, पैरों में पैर है, और बहुत ही जल्दी ये महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के भी ध्यान में सारी चीजें आ जाएगी कि यह एमवीए हमको स्थिर सरकार और लोगों की सेवा वाला सरकार नहीं दे सकती। जो उद्दिष्ट के लिए जीते हैं, ऐसे फडणवीस जैसे लोग ही हमारे कल्याण के रास्ते खोल सकते हैं। मेरा विश्वास है और मानना भी है कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता इस दूरदृष्टि वाले नेता को स्वीकारेगी और उनके काम करने के तरीके को अपनाएगी, और वोट निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भाजपा और शिवसेना के पाले में ही आकर गिरेगा। मेश्राम जी, एक छोटा सा सवाल चलते चलते, जानते कि बीएमसी चुनाव का सवाल है, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का सवाल है, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर की क्या स्थिति है उसके बारे में तो आपको ज्यादा मालूम होगा। ये बताएं कि 12 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी चुनाव होने वाले हैं। पहले खबर आई थी कि शायद अक्टूबर तक हो जाएंगे, अनाउंसमेंट आ जाएगी। आपके पास क्या जानकारी है सर, कब तक होने वाले हैं? ये जब तक मसला कोर्ट में है जी, कोई भी तरह का प्रेडिक्शन करना उचित नहीं होगा। जी, हम भी यह मान के चलते हैं कि बीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले दिन में, जैसा कि देवेंद्र जी ने भी अपने संभाषण में कई बार कहा है कि हम मान के चलते कि अक्टूबर में होगा। लोकशाही का जो एक मंदिर है, उसको मजबूत करने के लिए
कोई भी प्रकार से हो, हम भी चाहते हैं कि चुनाव का सामना करना पड़ेगा और चुनाव के लिए हमको सज्ज रहना पड़ेगा, चुनाव में जाना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में चुनाव होने की संभावना Wonderful. निश्चित रूप से है। Absolutely wonderful. That would be really and truly nice. Meshram ji, once again, congratulations on the inauguration of the new Parliament building, and congratulations above all for the fact that we have the Thank you same so much, Prime sir. Minister. We have the same Prime Minister, sir, who laid the foundation stone and who inaugurated that same building. मतलब foundation से inauguration एक ही term में Yes, yes. 2.5 साल के That's the बीच point. आज तक कभी हुआ नहीं है. Very frankly speaking, we must appreciate that. That's the बा- point. बाकी और सर सिर्फ संसद ही नहीं सर, सिर्फ जी। संसद ही नहीं है। आप एमटीएचएल देख लीजिए, आप समृद्धि महामार्ग देख लीजिए, आप कोस्टल रोड देख लीजिए, जी, जी, जी। आप महाराष्ट्र के अंदर में चलने वाले विकास कार्य देख लीजिए, आप गडकरी साहब ने बनाए हुए रास्ते देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देखे और सपने और प्रत्यक्ष में उतारे सपने, सारी चीजें खोलकर देख लीजिए। सिर्फ संसद भवन ही नहीं, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम करके दिखाया है। Wonderful. And I am waiting to go from Mumbai to Delhi by road so that I can reach Delhi in less than 12 hours. वो मतलब Yes, जल्द से yes. जल्द शुरू हो जाए। मुझे जो खबर आई है वो अक्टूबर तक आई थिंक इनॉग्रेशन होने वाला है उसका। बहुत जल्दी हो जाएगी। It's almost in October this year as far as I know. मेशराम जी बहुत Yes. बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. नमस्कार सर। थैंक वंदे यू मातरम। साहब, थैंक यू वकील साहब, वंदे Thank you मातरम। so much. वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। Thank you so much. Well, that's the BJP, very, very confident, Extremely and as they ought to be. But the only thing is that confidence may actually be misplaced. Let me tell you very frankly, because the price rise has a huge emotional appeal. Exactly, sir. Price उसके hikes, खिलाफ आप नहीं लड़ सकते साहब। unemployment, आप नहीं cost लड़ of सकते gas. ना। जो अभी बीजेपी जिस प्रकार चल रही है Double ना, income. हम false promise नहीं देते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब I think it's going to cost them. Very frankly speaking, it is really going to cost them. And to find out more about this, I think we've got Mr. Arshad Azmi of the Congress with us. Arshad Azmi साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू द शो सर। स्वागत है आपका निशा दाऊ में। हाँ, आज thank की you तारीख very much, में thank you very much। सर, आज की तारीख में जिस प्रकार कर्नाटक में आप लोगों ने दिखाया कि लोगों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल चाहिए, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, आप लोगों ने लोगों के बारे में बात करी। तो क्या वही चीज बाकी देश में भी लेकर जाएंगे आप, अरशद आजमी साहब? देखिए साहब, अगर आप जो हमारा संविधान जो बना है उसके उस संविधान की गहराई में आप जाएंगे तो उस संविधान की बुनियाद ही इसी बात पर है कि एक आम आदमी को उसकी जिंदगी की तमाम तर जरूरतें मुहैया कराना, उस तक पहुंचाना, यही इस देश में बनने वाली सरकारों का कर्तव्य है, जी। उनकी जिम्मेदारी है, उनका जी। सबसे अहम काम है। वही चीज को जो है संविधान की वो जो बुनियाद है, उसी बुनियाद को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में लोगों के जहन में डालने की बात की कि ये सरकारें लेफ्ट और राइट के लिए नहीं बनी है, बल्कि सीधे सीधे इसलिए बनाई गई हैं कि ये आपकी मूल सुविधाओं को आप तक पहुंचा सके। और वो बात जनता के समझ में आई और जनता ने उस पर अपना रिएक्ट किया, अपना वोट दिया। और देखिए फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो ढोंगी सरकार जो लोगों के अहम मुद्दों को छोड़कर बाकी दुनिया के तमाम मुद्दों पर वो चुनाव लड़ती, वो हार गई। तो यही प्रयास जो है वो पूरे मुल्क में, पूरे भारत में किया जाएगा ताकि अब वो आम आदमी जो 70-75 साल इस देश की आजादी के हो चुके हैं, और इतना तो अब सभी लोगों को समझ में आने लगा है कि सरकारों का कर्तव्य क्या होता है, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। उसी को बिल्कुल उसी तर्ज पर पूरे भारत में चुनाव होगा और इसका भरपूर प्रयास करेगी कांग्रेस। एब्सोल्युटली। तो क्या बीच बीच में हम लोग क्या अपने मार्ग से भटक गए थे? क्योंकि 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन का दौर आया, मार्केट्स खोलती गई, तो क्या जो कांग्रेस इसी को रिप्रेजेंट करती थी, कांग्रेस इसी बात का प्रतिनिधित्व करती थी कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो सबसे गरीब है, हम लोग उसके लिए खड़े हैं। तो आपको लगता है कि बीच में कांग्रेस जरा भटक गई थी अपने रास्ते से, अरशद आजमी साहब? नहीं, देखिए कांग्रेस तो नहीं भटकी थी, कांग्रेस को भटकना नहीं बोला जा सकता है। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे नेताओं ने जिन्होंने अपनी इलाकाई पार्टियां बना ली, तो आखिर वो किस बुनियाद पर अपनी पार्टियों को खड़ा करते? उनके पास कोई मुद्दा तो हो, कोई वजह तो हो कि उन्होंने पार्टी क्यों बनाई। तो ज्यादातर पार्टियों ने आप देखिए कि इसी बुनियाद पर प्रचार किया
चाहे वो धर्म की भी बुनियाद दे लीजिए या जातिवाद की बुनियाद दे लीजिए, ज्यादातर लोगों ने इलाका, जात, धर्म, जबाने इसी पर अपने प्रचार को बढ़ाया। और कांग्रेस पार्टी चूंकि सभी धर्मों का, सभी लोगों का नेतृत्व करती थी, वो किसी एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार नहीं कर सकती थी, वो पिछड़ गई उसमें। क्योंकि अगर मैं कोई भी नेता या कोई पार्टी पर्टिकुलर किसी समाज की बात करने लगेगी तो वो समाज आकर्षित होता है उसकी तरफ कि लोग हमारी बात ये कर रहे हैं। लेकिन आप जब सबकी बात करते हैं तो किसी ना किसी को ये लगता है कि शायद इसमें हमारी बात नहीं है। तो वो एक मसला खड़ा हुआ कि जात और धर्म के नाम पर जो पार्टियां बनी, उन्होंने इलाके के नाम पर जो पार्टियां बनी, उन्होंने अपना प्रचार किया और उसमें से फिर धीरे धीरे लोग जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी जात, भाषा और धर्म के नाम पर दूसरी पार्टियों की तरफ गए। लेकिन उससे हुआ क्या? देखिए, आज देश में जिस मकाम पर नफरत पहुंची है, जिस लेवल पर आज नफरत खड़ी है इस देश के अंदर, कि वो देश जो मतलब अपने भाईचारे के लिए आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है जी। अब उसमें किस तरह के डिवाइडेशन होने लगे। तो कांग्रेस नहीं भटकी थी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उसको भटकाने का काम किया। और खासकर बीजेपी ने जिस तरह से 1989 के बाद उसने धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाया, उसके बाद से ये इसमें दिशाहीन हो गए मामले और लोग अलग अलग तरीकों से वोट कर। आजमी साहब, आज भी बीजेपी आप पे आरोप लगा रहा है कि आज भी राहुल गांधी जी देश के बाहर विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में यह कहा कि वही 4-5 चीज उन्होंने कहा, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, स्पेशली मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड। He talks about the need for जो ऑपोजिशन को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है यहाँ इस देश में, उस चीज को हाईलाइट करते हैं। और जब भी राहुल गांधी इस चीज को बाहर हाईलाइट करते हैं, बीजेपी का इमीडिएट रिएक्शन होता है कि देश के बाहर जाके देश का अपमान का, देश को अपमान करना। तो आप इसको कैसे देखते हो? डू यू स्टैंड विद राहुल गांधी जी कमेंट्स? बिकॉज ये राहुल गांधी जी के कमेंट्स में पूरे पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वर्ड्स टुवर्ड्स कांग्रेस फ्रॉम जेडीएस, ये एक बहुत जबरदस्त इलेक्टोरल फायदा हुआ था आपको। आज वही हो रहा है और क्या 2024 में यही दिशा कांग्रेस अपनाने वाला है? आजमी साहब, देखिए, देश में जो गोदी मीडिया है, जो अपना इनके प्राइवेट चैनल्स हैं, अडानी अंबानी लोगों के जो प्राइवेट चैनल हैं, उनके जो पोपट एंकर हैं, आप समझिए पोपट वही बात बोलता है जो उसे रटा दी जाती है। तो उन एंकरों ने जो इमेज बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज बनाई है, जब भी राहुल गांधी विदेश के बाहर जाते हैं तो वो इमेज टूटने लगती है। क्योंकि देश की हकीकत ऐसा लोगों के दरमियान, जब वो बुद्धिजीवियों के दरमियान जब ये बातें पहुंचती है, तो वो जो इमेज बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लीडर की गोदी मीडिया ने, वो टूटने लगती है। वो घबराने लगते हैं कि वो हकीकत जो देश का मीडिया कभी बाहर नहीं आने देने की कोशिश करता है, वो राहुल गांधी के जरिए पूरी दुनिया में फैल रही है बात को। तो वो परेशान हो जाते हैं कि अपना ये भारत का अपमान हो रहा है। अब बताइए, भारत का अपमान कौन कर रहा है? आज एक छोटी सी मैं मिसाल आपको बताता हूं। अभी ये कल की बात है, जो जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो 28 मई को जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, उसका रिएक्शन आप जानते हैं। जो वर्ल्ड फेडरेशन है रेसलिंग का, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने ये ऐलान किया है कि अगर भारत के अंदर भारतीय कुश्ती संघ 45 दिनों में अगर इलेक्शन वहां पे नहीं कराता है तो भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि भारत का अपमान पूरी दुनिया में कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है। एक अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का सुलूक कर रही है, क्या इंटरनेशनल मीडिया उस चीज को नहीं छापता है? वो भी छाप रहे हैं। अरशद आजमी साहब, सिर्फ भारत का अपमान करते हैं, सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ने ही नहीं कहा है, अपमान करते हैं। सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ने ही नहीं कहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने भी यही कहा है, उन्होंने भी यही कहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा। तो मैं देखिए, सवाल मैं वही बात को मैं उठा रहा हूं कि भारत का अपमान ऐसे होता है, भारत का अपमान ऐसे होता है कि आप जब भारत की सरकार को पूरी दुनिया में मोदी सरकार बुलाते हैं। मोदी सरकार क्या सेंटेंस हो गया? ये तो भारत की सरकार है ना, किसी एक व्यक्ति की सरकार हो सकती है क्या? और जब मोदी सरकार पर हमला होता है
तो ये भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के जो लोग हैं, ये पूरी दुनिया पूरे उस पर हल्ला मचाने लगते हैं कि राहुल गांधी गए और उन्होंने विदेश में भारत का अपमान कर दिया। ये बात हजारों बार कही जा चुकी है और साबित है ये बात जी। कि नरेंद्र मोदी का अपमान करना, जबकि उनका अपमान, उनका व्यक्तिगत अपमान कोई नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी नेता के ऊपर चोट करना भारत देश का अपमान नहीं हो सकता है। लेकिन गोदी मीडिया बार बार उसको लाती है कि भारत का अपमान हो गया, अरशद भारत आजमी का साहब, अपमान हो गया। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल जी, सर। पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक जी। सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे खुद से। जी। सर, पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ, पार्लियामेंट की नई इमारत जो बनी है, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ, उसमें सेंगोल लाया गया, वो अधिनम के बहुत वहां पर गुरुजी आए, संत महात्मा आए, उन्होंने वो यज्ञ किया, जो भी किया, वो सब देख करके आपको क्या महसूस हुआ? खुल के बोलें सर, प्लीज। देखिए साहब, वो देखकर बिल्कुल और सिर्फ यही महसूस हुआ कि पूरा ये जो देश था, इसकी जो बुनियाद इस संविधान के ऊपर रखी गई थी, वो संविधान जो हर जाति और धर्म के हिसाब से बनाया गया था, वो संविधान जो एक अम्ब्रेला की तरह इस देश के तमाम मजहबों के ऊपर अपनी छत्र छाया रखता है और इजाजत देता है इस बात की कि आप अपने देश के अंदर अपने धर्म की प्रैक्टिस खुलेआम और पूरी आजादी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीके से देश का प्रधानमंत्री एक सेंगोल के सामने, जिसकी कोई हकीकत पूरे संविधान में नहीं रखी गई है, जिसकी कोई मान्यता पूरे भारतवर्ष में नहीं है, उस सेंगोल के सामने देश का प्रधानमंत्री जो है वो नतमस्तक हो जाता है। तो इससे ज्यादा अफसोस की और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? उस दिन यही लगा कि जैसे इस देश के अंदर कोई संविधान नहीं है और एक व्यक्ति जो अपने आप को अब इस मुल्क का राजा समझने लगा है, उस राजा का राज अभिषेक हो रहा है। ये कोई लोकतांत्रिक देश नहीं बचा। यही महसूस हुआ उस दिन कि अब हमारे देश का संविधान भी बहुत जल्द, अगर ये ताकतें दोबारा इक़्तिदार में, दोबारा सत्ता में आ गई, तो बहुत जल्द इस देश के संविधान को भी कहीं पीछे रख दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर आगे निकल जाएगा। अरशद आजमी साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि संवैधानिक तौर पर अगर, हेलो? जी, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, कैन यू हियर मी सर? हेलो, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि आपकी आवाज आ रही है सर हमको। हेलो? आपको कोई कॉल आ रहा है शायद। सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज भी बड़ी फर्स्ट क्लास आ रही है। हेलो? कोई टेंशन नहीं है। आपको कोई कॉल आ रहा है कहीं से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फोन पे। जी, आपको आवाज आ रही है सर अब? कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी, अरशद आजमी साहब, ये बताएं कि संवैधानिक हेलो? तौर पर अगर देखा जाए, सर कैन यू हियर मी? आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, साफ आ रही है। संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए हेलो? तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मैं आपसे जानना आपकी चाहता आवाज आती है, हूं। पर बीच में ब्रेक हो जाती है। जी, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर? सर आपके यहाँ? अभी ठीक है? आवाज ठीक है अभी? हेलो, कैन यू हियर मी सर? हाँ आवाज आ रही है आपकी, पर ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाती है, राइट? सर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है। हेलो? वी आर अ नेशन ऑफ लॉज। Is there a problem? Can somebody solve the problem, please? Mr. Azmi, can you hear me, sir? हेलो, Can you hear me, sir? आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं वो ब्रेक हो जाती है साहब, आवाज आ रही है। आवाज ब्रेक हो जाती है, लेकिन अभी ठीक है क्या? अभी आ रही है? I think we seem to have lost Mr. Azmi. We'll try and get him back on. As Mr. Azmi said, as anybody would have said who is not of the, how shall I put it, Hindu disposition, Pradeep ji, they actually speaking, if you look at it, they may have got very disturbed at the kind of ceremony that went on. I liked it. So did a hell of a lot of other people. But there are a hell of a lot of people all over in India who are not Hindus and who perhaps believe in totality, in secularism and in the secular principles that are enshrined in the Constitution. So it is but natural that they would be disturbed at this ceremony. But Mr. Modi and the BJP believes that
propagating one's own religion is Yes. also a part of the fundamental rights guaranteed in the Constitution. In Parliament? In the Parliament also. And he's also allowed other religions, other religious leaders Like, to bless I the didn't see- occasion. I Bless didn't- the occasion. I didn't see anybody else. There were a lot of people from various communities were given some time where they were blessing this entire occasion. Lovely. But the ultimately the point is when Rahul Gandhi says it was just short of Raj Abhishek, बोले ये पार्लियामेंट है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को आप अपने राज अभिषेक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और शरद पवार जी ने कहा कि you are taking us back. Right, I think we got Mr. Azmi back. और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट जो नेहरू जी ने एस्टैब्लिश किया था, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट से हम लोग दूर जा रहे हैं। जी, इस let's देश ask को him. आप आजमी पीछे ले जा रहे हो। साहब, आजमी साहब आप ये बताएं। सर एक चीज मैं और कहना चाहता था। जी बताएं। उस दिन संसद का जो उद्घाटन हो रहा था, आपने देखा कि उस पूरी संसद के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर बुलाए गए थे, उन्हें किस तरह से एक अलग से कोने में बैठा दिया गया और पूरे संसद में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अकेले चलते रहे और कमेंट्री पीछे से होती रही। मुझे तो लगा कि थोड़ी देर के बाद वो कमेंट्री जो कर रही थी महिला, वो ये कहेगी कि बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी तशरीफ ला रहे हैं। मुझे लगा कि अभी वो ऐसा कह देगी, लेकिन और उसके बाद आप देखिए कि स्पीकर महोदय भी वहां पर थे। उन्हें इतना डर लगा रहता था मोदी जी से कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इशारा नहीं करते थे तब तक स्पीकर आगे नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले दिनों में वो अपने सम्मान को बचा रहे थे। उन्हें डर था इस बात का कि क्या पता कब मोदी जी के कैमरे के सामने मैं आ जाऊंगा और वो मुझे हाथ लगाकर बगल में हटा देंगे। तो साहब ये क्या मतलब क्या मजाक बनाया आपने पूरी दुनिया के सामने। एक संसद का उद्घाटन था, देश के तमाम नेता जमा होते, देश की राष्ट्रपति आती, उपराष्ट्रपति आते, सारे लोग आते और एक अच्छे वातावरण में इसका उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्ति पूरे संसद में घूम रहा है। अच्छा, आपने ही संसद बनाई ऐसा आप कह रहे हैं, फिर आपने ही संसद बनाई और आप मुख्य अतिथि भी हैं। तो क्या तमाशा बनाया इन्होंने पूरी दुनिया में उस भारत का जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए आज भी सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में नंबर 1 जाना जाता है। आजमी साहब, उनका कहना है कि अगर दलित को किसी ने न्याय दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिया है। दलितों का अगर किसी ने प्रिविलेज दिया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। उनका कहना है रामनाथ कोविंद जी को देखिए, दलित पिछड़े राष्ट्रपति बन गए। द्रौपदी मुर्मू देखिए, पिछड़े दलित, उनको राष्ट्रपति बनाया आदिवासी से। तो आप उनका बीजेपी का कहना आप बोलते हो, बट अगर काम करता है तो मोदी जी करते हैं। बोलिए आजमी साहब। नहीं, रामनाथ कोविंद जी से आपने शिलान्यास क्यों नहीं कराया संसद का? रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब वो राष्ट्रपति थे तब मैंने एक प्रोग्राम में देखा था कि वो बाहर खड़े हुए थे और दूसरे लोग जो है वो मंदिर के अंदर गए हुए थे। और मैंने ये भी देखा कि राष्ट्रपति जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पैर छू रहे थे। क्या आपने दर्जा दे दिया राष्ट्रपति को? आपने दलित, अच्छी बात है कि दलित समाज से एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना, लेकिन आपने उन्हें बनाकर क्या रखा? आज संसद का उद्घाटन हुआ, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन क्या आपने उनका अपमान नहीं किया, उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाकर? आप देखिए वहां पर सारे लोग जमा थे, सारी गोदी मीडिया के एंकरें जमा थी, सारी वो पापा की परियां जिन्हें बोला जाता है वो जमा थी। लेकिन कौन नहीं था? देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी वहां पर नहीं थे, जो आदिवासी भी और महिला भी हैं। ये सम्मान आपने दिया। जब कभी इस संसद का इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसमें यह पढ़ा जाएगा कि ये संसद का उद्घाटन हुआ था 2023 में, लेकिन इस देश की राष्ट्रपति जो महिला भी थी और आदिवासी भी थी, वो उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में हाजिर नहीं थी। यह इतिहास पढ़ा जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा देश के आदिवासियों को और देश के दलितों को। ये ढोंगी सरकार है साहब, जो सरकार आज तक अपने आप को भारत सरकार नहीं बोल पाई, वो जो आज तक अपने आप को मोदी सरकार बोलती है, ये ढोंगी सरकार है और ये सिर्फ दलित और आदिवासियों के नाम पर ढोंग रच रही है। लेकिन यहाँ पर आजमी साहब आपकी भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है साहब। सबसे पहले दलित प्रेसिडेंट भारत के डॉक्टर के.आर. नारायणन थे। के.आर. नारायणन पहले दलित प्रेसिडेंट थे। अब ऐसे बात हो रही है
कि जैसे पहले दलित प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद वॉज द सेकंड दलित प्रेसिडेंट, पहले दलित प्रेसिडेंट तो के.आर. नारायणन थे। तो इस विषय के बारे में तो आपको बात करनी चाहिए ना आजमी साहब। देखिए साहब, मैं फिर वही बोल रहा हूं ना कि क्या है इन मुद्दों के ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? ना उन्होंने 9 साल का कार्यकाल गुजार दिया, 9 साल के कार्यकाल में पूरे देश को वो अंधकार में लेके चले गए। यही सब बात करेंगे, हमने पहले राष्ट्रपति बनाया, पहली महिला राष्ट्रपति भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बनाई गई। ठीक बात है कि नहीं है जी। आजमी साहब सुनिए, इनके रिपोर्ट कार्ड देखिए, आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, 9 साल के जो आप बोल रहे हो, मोदी जी ने सब जगह गली गली तक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने भेजा है। 2 मिनट में पढ़ के सुनाता हूं। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर, आर्टिकल 370, 35, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान 11 करोड़ को लोगों को फायदा, आवाज 3 करोड़ लोगों को फायदा, गैस फ्री 9 करोड़ लोगों को, शौचालय 11 करोड़ लोगों को, आयुष्मान 2 करोड़ लोगों, नल से जल 12 करोड़ लोग, 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर से महाराष्ट्र को दिए। आजमी साहब, इतना तगड़ा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पूरे देश में फैला हुआ है, गली गली फैला हुआ, कैसे मुकाबला करोगे सर? अभी सर मैं आपको बताता हूं। अब अभी आपने पहला वो किया, 5th एक बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल 80 करोड़ लोग जो हैं, 80 करोड़ लोग उस बिगेस्ट इकोनॉमी में इन द वर्ल्ड में 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। क्या करेंगे आप साहब? दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के क्या करेंगे? दूसरी बात, 3 करोड़ लोगों को मकान। 2022 तक इन्होंने इस देश के वो तमाम लोग जिनके पास मकान नहीं थे उनको देने का वादा किया था, कहां पूरा हुआ? इन्होंने महंगाई को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, वो आज तक नहीं मिली। इन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, 11 रुपए में शक्कर बेचने वाले थे, 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले थे, आज कहां चली गई? शक्कर 50 रुपए के ऊपर चली गई, पेट्रोल जो है वो 100 के पार जाके खड़ा है। दूसरा आप ले लीजिए, किसानों की बात कर रहे हैं, 700 किसान आंदोलन में बेचारे अपनी जान गंवा बैठे, आज तक इन्होंने एक उनके ऊपर एक छोटा सा जुमला नहीं कहा, एक उनके लिए सहानुभूति के शब्द नहीं कहे, ना उनके साथ उन्होंने एमएसपी की बात करी। आप इन्होंने कहा था किसान की आयु जो है वो 2022 तक दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या साहब दुगनी? 370 की ये बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने जो घोषणाएं की थी साहब, अब तक तो दुनिया से इनकी घोषणा के हिसाब से मोदी जी की दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिट जाना था, चाइना आधा हमारे कब्जे में होता, लेकिन उल्टा हो गया कि चाइना को आंख दिखाने ये निकले थे, पर चाइना ने आंख दिखाकर हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। आप ये देखिए कि आज की डेट में जो बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ये बोल रहे हैं साहब, 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब नौकरी ढूंढना इस देश में बंद कर दिया है। ये देश आज इस देश का वो अंधकार इन्होंने बढ़ा दिया कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी। क्या इन्होंने इस देश की उन्नति को किया है? महंगाई सरेआम इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है आज किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इसका अंदाजा भी ये पर सरकार नहीं लगा सकती। तो ये सिर्फ वादे, सिर्फ उसको कागजों पे ये करना, सिर्फ अपनी बढ़ाई करना और अपने ही आप को हमेशा प्रोजेक्ट करना, ये भारत का इतिहास नहीं रहा है। तो आजमी साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि अब आने वाले जो चुनाव हैं और आगे जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस यही सब मुद्दे लेकर के जाएगी। बिल्कुल यही देखिए साहब, बिल्कुल यही मुद्दा ही है। मैंने कहा ना कि इस देश के संविधान की जो बुनियाद है जी, वो बुनियादी यही है कि एक आम आदमी तक उसके जीने के लिए, उसको जिंदगी गुजारने के लिए वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी वो किसी भी सरकार की है जो इस देश के अंदर है। तो कांग्रेस उसी के ऊपर जाएगी। किसी एक आदमी का महिमा मंडन करने के लिए ये देश वोट नहीं डालता है, किसी एक आदमी के दोस्तों को अमीर बनाने के लिए ये देश वोट नहीं डालता है, किसी एक आदमी के करोड़ों रुपया विदेशी यात्राओं पे खर्चा करने के लिए ये देश वोट नहीं डालता है। ये देश वोट डालता है उस गरीब आदमी की तरक्की के लिए जो तमाम देश की तमाम तरक्की याफ्ता लोगों से पिछड़ गया है। ये देश उसके लिए वोट डालता है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 9 सालों में जो हर तमाम उस पे ये विफल रही है, वो अब तरह तरह की बातें, तरह तरह के नाटक फैलाएगी, लेकिन कांग्रेस का और तमाम विपक्षी पार्टियों का
जो भारत देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि हम एक एक व्यक्ति तक जाकर इस बात को बता सकें कि ये सरकार 10 साल तक आपके तमाम मुद्दों से दूर रही है और इसने सिर्फ अपना और अपने लोगों का फायदा किया। अरशद आज़मी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। जिस प्रकार आप अपना विश्लेषण देते हैं बड़ा जबरदस्त होता है और बहुत मजा आता है आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Really wonderful hearing Mr. Arshad Azmi. बिल्कुल sir. That is the Congress Absolutely. point of view. Yes, yes. And he Like- puts it very forcefully and very And I love the clarity of balanced, thought. yes. And I love the clarity of thought. Finally, I think the Congress is getting there. The Congress has got clarity of thought. And if you notice, I don't know whether we haven't discussed it. We ought to have. The CSDS, they actually came up with a survey about 4 days ago, all about the acceptability of Mr. Modi and Mr. Rahul Gandhi. Mr. Modi's popularity remains exactly where it is. It is very, very high. But Rahul Gandhi's acceptability has grown. Nowhere near Mr. Modi yet, but it has grown over the years. And I think that's a very good sign for the Congress. जिस प्रकार राहुल गांधी को लोग स्वीकार करने लगे हैं, राहुल गांधी की नई लीडरशिप क्वालिटीज को देखने लगे हैं और सराहने लगे हैं, that is good news for the Congress. There is a possibility that the Congress may well be back. I don't say they might win, but they might even touch 100 seats in 2024. One never knows. Sir, the 4 pillars on which the entire BJP is putting its entire election plank, there is Rashtravad nationalism, national security, you're talking about appeasement of none, and development is concerned. Yes. So, when national security is there, the Congress will have to invoke Indira Gandhi because they That's have not right, been they'll doing have it. to. They got stuck with Manmohan Singh and the 2611. Now, when nationalism is concerned, it really has to put something out to show that they are greater patriots than the BJP. Where development is concerned, they have to march. Says development has not started from 2014, it has started before 2014. They have to impress the entire population. And appeasement is concerned, in fact, appeasement is what is going to get them votes, like in Karnataka. लेकिन प्रदीप जी, कांग्रेस अगर मान लीजिए प्राइस राइज के ही मुद्दे पर, जैसे गैस सिलेंडर का मुद्दा है, बिल्कुल सर, अगर इसी के ऊपर, जैसे अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात सुने, अभी मेश्राम साहब हमारे साथ थे और उन्होंने ये कहा, मेश्राम साहब ने ये कहा कि भाई देखिए हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसा उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। झूठे वादे मतलब 500 रुपए में सिलेंडर नहीं बेचेंगे। अच्छा भाई, नहीं बेचोगे तो हारो, सीधी सादी बात है। Wherever you are, let me tell you, whether it is Uttar Pradesh, whether it is Bihar or anywhere else, let's be very clear, it will be very difficult for the BJP to win. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा लगता है मुझको। आगे हो सकता है, मिस्टर मोदी might pull a rabbit out of a hat, he is a magician. When it comes to national elections, general elections, the law of But other they things will have that, to do something, yes, प्रदीप बिल्कुल जी, sir. on price rise. Yes. अगर आज प्राइस राइज और जॉब क्रिएशन के ऊपर भारतीय जनता Exactly. पार्टी कुछ कर देती है, Yes. तो विपक्ष के पास कुछ रहता नहीं। No topics at all. सीधी सादी बात है। Yes, yes. But in the yes. meantime, we showed you a small film yesterday. कल हम लोगों ने आपको एक 10 मिनट का छोटा सा शो एक दिखाया था, जहां पर बुल्ढाना में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जो है ना महाराष्ट्र में, वहां पर एक गांव में जो ये कहा जाता है कि जीजा माता जी का खुद का मायका है, वो उस गांव में किस प्रकार एक दलित परिवार के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि विश्वास नहीं होता कि आज की तारीख में ऐसा हो रहा है। पैसे वापस देने के बावजूद वहां के जो साहूकार हैं, उन्होंने आकर के उस गांव पे धावा बोल दिया, उनका घर जला दिया, उनकी जमीन जो है वो पूरी की पूरी ले ली, और न जाने और कितने अत्याचार उनके ऊपर किए। यहां तक कि जब वो कोर्ट जा रहे थे, उनके घर के बच्चा, जो उनका घर का जो बच्चा है, लड़का जो है, उसको भी पर लोग मतलब ऐसा कर दिया एक्सीडेंट में, पुलिस कह रही है एक्सीडेंट है, फैमिली कहती है कि जान करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसको मार दिया गया। पुलिस जो है प्रदीप जी 302 का केस नहीं ले रही है, मर्डर का केस नहीं ले रही है, और उसकी बूढ़ी मां जो है, उस लड़के की बूढ़ी मां जो है, उसके खिलाफ 307 का केस ले लिया है। 37 लोग, 36 लोग या 37 लोग उनके घर जलाने के लिए आए, और यह कहा जा रहा है कि उस बुढ़िया ने
अधेड़ उम्र की जो नारी है उन्होंने उठ करके उनके ऊपर हमला कर दिया। 307 का केस। प्रदीप जी। Sir, classic case of what we see had जो exploitation, suppression of the poor and downtrodden. There's a money lender in the village. You got a poor man in the village. The poor man goes and takes money from the money lender, and it goes on multiplying in his accounts books. And one day, the poor man accumulates some money, goes to the money lender. He says, "This is not the money that you lent me. You have to give me some more." And he refuses to give the land back. And then this is फिर ये atrocities act उस पे money lender पे लगा देते हैं. Money lender ultimately manages to keep the land, kill the person, everything is with him, and the law has not activated itself to see that the money lender is arrested. In this case, the poor and downtrodden suffers. जो गरीब से गरीब लोग हैं वो अब भी वंचित है, उनका कोई सुनवाई नहीं है. इस मुद्दे से ऐसा लग रहा है, इस विषय में ऐसा लग रहा है सर आज भी दलितों का शोषण उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े पुराने मित्र आम आदमी पार्टी के सुंदर पाठमुख साहब। सुंदर पाठमुख साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सुंदर पाठमुख साहब ये बताएं कि इस पर्टिकुलर केस में जिस विषय में हम लोगों ने कल बात करी थी उसमें अब तक क्या हुआ है, जरा दर्शकों को बताएं। अभी तक सर इसके ऊपर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जी। वहाँ की सिंदखेड़ राजा की पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया नहीं करके बोल रही है, और बोल रहे कि जो औरंगाबाद में तीसरा जो एक जो ऑफ हो गया शरद बेड़े, और उस जो बाइक जो चला रहा था वो शख्स जो है अभी औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और अभी पुलिस कह रही है कि जब तक उसका स्टेटमेंट हम लोग नोट नहीं करेंगे, जब तक आपको हम लोग नहीं बता सकते कि हम लोग कौन सा एफआईआर ले रहे हैं, एफआईआर ले रहे हैं भी कि नहीं ले रहे हैं। चार लोगों का स्टेटमेंट, बेड़े फैमिली का 4 लोगों का स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिस ने ले चुके हैं, लेकिन हमको अंदर से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ऐसा बोल रहे हैं, ये कोई मर्डर वगैरह नहीं हुआ है ऐसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन वो लड़के का नाम क्या था सर? सर जरा बताएं उस लड़के का नाम क्या था? शरद बेड़े, 30 उम्र है इनका। शरद बेड़े जी। हाँ, शरद बेड़े। इनके पिताजी ने 5 साल पहले जो साहूकार है विष्णु सेल के, इनसे 1.5 लाख रुपया 4 एकड़ खेती गिरवी रखकर 5 रुपए टका से पैसे लिए थे, और वो पैसे उनकी जो पत्नी है शरद बेड़ी की जो माँ है, इन्होंने इनका जो घर था मुंबई में वो घर बेचकर वो साहूकार के सारे पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। फिर भी साहूकार ने एक कच्चा ये जो पेपर बनाया था वो उन्होंने पक्का कर लिया, और अभी जमीन वापस करने के लिए वो लोग मना कर रहे, इसलिए ये संघर्ष चल रहा है। घर जलाया गया इनको, ये औरत को जो है ये 65 ईयर की औरत है, इनको आप देख लीजिए, इनको खेती में 37 लोगों ने, औरत मर्द सब मराठा फैमिली के लोगों ने मिलकर मारा, और लोकल पुलिस स्टेशन जो सिंदखेड़ राजा पुलिस स्टेशन है वहां पर वहां के वो टाइम के जो पीआई थे उन्होंने ये औरत के ऊपर ही 307 कलम लगाकर 15 दिन इनको जेल में भेज दिया। और उसके बाद ये लड़का जो है शरद बेड़े ये सारे केस को हैंडल कर रहा था, और तो ये फैमिली के जो विष्णु शेलके जो है लगातार उस घर में जाके वो फैमिली के पास जाके रास्ते में रोक के वो बूढ़ी औरत को बोलते थे कि देख लेना कि तेरे लड़के को ये 8 दिन के अंदर मैं खलास कर दूंगा। 12/5/2023 को विष्णु शेलके ने उनके घर में जाके उनको बोला कि देख लेना अगले हफ्ते के अंदर मैं तेरे लड़के को खलास कर दूंगा अगर आपने एट्रोसिटी वापस नहीं लिया तो। और 14 तारीख को 14/5/2023 को ये घटना घटी, और बाइक के ऊपर 3 जन जा रहे थे, 3 जनों में से पीछे जो बैठा था उसको एक जोरदार पत्थर लगा, हाथ पे अभी भी उसके जख्म है, और तीनों लोग नीचे गिर गए। रास्ता बहुत बड़ा अच्छा रास्ता नहीं है, गाड़ी बहुत स्लो थी, लेकिन आगे वाला भी गिर गया। तीनों लोग गिरने के बाद बीच में जो बैठा था आदमी
उसको तो ज्यादा मार नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो बोलते कि जगह पे वो खलास हो गया। और जो लास्ट का जो लड़का बैठा था, उन्होंने ये भी बताया कि विष्णु शेल्के वो स्पॉट पे उधर थे और उन्होंने बोला कि हम लोग को मदद करो, हम लोग को हॉस्पिटल में लेके जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारे रिलेटिव लोगों को बुलाओ, मुझे टाइम नहीं है, और वहां से वो निकल गए। तो हमारा कहना ये है कि अगर शेल्के फैमिली से ये लोग कर्जा ना लेते, इनका घर ना जलाते, वो शेल्के फैमिली के ऊपर एट्रोसिटी ना होता, तो ये बच्चे का मौत होता था क्या? ये हमारा सवाल है। पाठमुख जी, जो फोटोग्राफ्स हम लोग देखे, जो उनके जो बेड़े फैमिली, जो बेचारे टिकीस थे जो मर गया, उनका बहुत खतरनाक जिस प्रकार से यस मुंह पे मार्क्स है, चेहरे पर मार्क्स है, चेहरे पर अटैक्स का मार्क है, वो एक्सीडेंटल मार्क्स नहीं है जो हम लोग देखे, वो एक्सीडेंट प्राइमा फेशियल इसमें क्लियर कट ये दिख रहा है कि वो एक्सीडेंट कम और अटैक ज्यादा हुआ है। और जो आप लोग कह रहे कि यही है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द अटैक इज जो एट्रोसिटीज का एक्ट 37 लोगों पे लगा था, वही एक कारण है कि इन पे वापस अटैक करके इनको हमेशा के लिए खत्म कर दिए। नाउ इट इज अ वेरी क्लियर कट watertight केस where the police is concerned, they have to arrest ये जो 37 लोग हैं जिनके पीछे हैं, स्टार्टिंग में विष्णु शेल्के, इनको एक्चुअली तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। मगर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पुलिस उस चीज पे नहीं जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बट ये जो दो लोग और बैठे थे बाइसाइकिल में, जो मोटरसाइकिल में जो बचे हैं, क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया और उन्होंने कहा कि अटैक हुआ है करके? जी पीछे जो बैठे थे, कारवारी खरात नाम है उनका। हाँ। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जब हम लोग, मुझे वो खरात को जो पत्थर लगा और पत्थर लगने से बाइक झटका खाकर गिर गई, तो उसके बाद आगे वाला जो शख्स है वो भी आगे जाके गिर गया, उसको भी कई मार लगा। और उसके बाद बीच वाला जो शरद बेड़े था, हाँ। वो एक्सीडेंट के जगह पे नहीं था, आगे कई मतलब 5-7 मीटर के बाद 10 मीटर की दूरी पे खड्डे में इनका मौत मिला, बॉडी मिला। कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो एट्रोसिटी का मामला, 37 लोगों को कम से कम 50-60-100 किलोमीटर लंबा जाना आना, सबको ट्रांसपोर्टेशन और उनको हाजिर करना, ये जो केसेस चल रहा था एट्रोसिटी का, एट्रोसिटी पीछे ले, नहीं तो तेरे लड़के को हम लोग खलास कर देंगे, ये मामला इसी के लिंक होता है। और अगर समझो ये पुलिस, अगर वहां की पुलिस इसको स्पष्ट तरीके से बोल रही है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन हम लोग जब वो फैमिली को लेके, जो अवर सचिव है खंडारे साहब, गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी, उनके अवर सचिव है खंडारे साहब, उनको मिले तो उन्होंने वहां पे वाघ बोल के अभी जो किया है उनको फोन किया और बोला कि इसमें 302 लगना चाहिए, अभी के अभी उनको अरेस्ट करो, जो विष्णु शेल्के है उनको अभी के अभी अरेस्ट करो। लेकिन वो जो वाघ जो है वो ये बातों को डिनाई करते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट है और ये लोग झूठी केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंदखेड राजा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जिला कौन सा है इसका? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। तो वहां के पालक मंत्री या कमिश्नर, एसपी, वहां से किसी आपने संपर्क किया किसी से? नहीं, एसपी को जाके मिले थे, एसपी को भी निवेदन दिया था। हाँ। एसपी ने ये कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है और ना हमको बुलाया जा रहा है, ना हमको कुछ बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं और एफआईआर का क्या हो रहा है कोई बताया नहीं जा रहा है। और एविडेंस सारा मिटाने का कोशिश वहां पे किया गया, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ वहां का कोई, ये जो पुलिस स्टेशन ने जैसा इंक्वायरी करना चाहिए था उस तरीके से इंक्वायरी नहीं किया। उसके बाद में ये सारे लोगों के फोन इन्होंने जमा नहीं किए, फोन से ये सारा मामला क्लियर होता है कि किसने किसको बात किया रहेगा। शेल्के ने किसी को तो बात किया रहेगा, जो बाइक पे लेके आने वाला जो लड़का है उसको बात किया रहेगा, और भी लोगों से बात किया रहेगा कि ये मैं कैसे इसको कांड, ये कांड कैसे करना जा रहा हूं। पाठमुख साहब, अभी हम जो फुटेज चल रही है हम देख रहे हैं, वो जो शरद भेड़े की जो माँ है, जो अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं,
इनके खिलाफ 307 दफा 307 लगा दिया गया कि इस 65-70 साल की महिला ने 37 लोगों पर अकेले हमला कर दिया। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है ऐसी चीज करने में। बाडनूक साहब। यस सर, ये तो पैसे के ऊपर ये सारा खेल चलता है। गांव में जान की कोई कीमत नहीं है और दलितों महाराष्ट्र में अभी 21वीं सदी में 21वीं सदी में महाराष्ट्र में ऐसे कितने केसेस हो गए हैं। यहाँ पर खैरलांजी हुआ महाराष्ट्र में जी। सारे दुनिया ने देखा जी। उसके बाद में ये जो घाटकोपर रमाबाई कांड हुआ, वहां पे 11 लोगों को गोली मारी गई। उसके बाद में ये तुम्हारा नगर जिले में तो कितने 3-4 कांड 5 कांड तो खाली नगर जिले में है। तो दलितों के ऊपर और स्पेशली बौद्धों के ऊपर ये जो अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर ये जो हमारे सारे जो पॉलिटिकल लीडर और जो पार्टी के सारे लीडर और मैं सभी लोगों को इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट जो इतना अच्छा कानून बनाया गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जजमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एट्रोसिटी अगर कोई बात करता है एट्रोसिटी लगाने की, तो जो भी आरोपी है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, तुरंत एफआईआर लिया जाए। लेकिन वहां की जो पुलिस, वहां का जो पुलिस है वाघ बोल के पिया है, ये वाघ ये बड़ा मतलब ये सारे केस को दबाने का और उसको जब ये पोस्टमार्टम का कर ये बॉडी जब हम लोग वहां के फैमिली सिंदखेड़ राजा पुलिस स्टेशन के पास लेके गए थे, तो वहां पर उनको बोला गया कि आप इसको तुरंत अपनाइए, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग एक कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। लोगों को डराया गया, धमकाया गया, धक्का मुक्की हुआ, पुलिस स्टेशन से बाहर हकाल के देने की कोशिश की गई। ये सारा चल रहा है आज भी। शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, फुले शाहू अंबेडकरी महाराष्ट्र में, आज भी बौद्ध फैमिली के ऊपर, दलित फैमिली के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इतनी संगीन जुर्म ये सेलके फैमिली ने किया है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। आपको उम्मीद है सर? 302 कलम लागू होना चाहिए। क्योंकि आप अभी देवेंद्र फडणवीस जी के ऑफिस गए थे, उनके पीए से आप मिले और उनके पीए ने आपके सामने फोन किया वहां पर और उनको एकदम इंस्ट्रक्शन भी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल डू रिमेंबर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उनको ये कहा गया कि भाई जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो भी गिल्टी आदमी है, जो भी दोषी है, उसको एकदम गिरफ्तार किया जाए। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा? हम लोग दो बार वहां पर जा चुके हैं। मिस्टर खंडारे बोल के अवर सचिव है, वो वहां पे फोन किए, वहां पे उन्होंने हमारा जो निवेदन था वो कॉपी स्कैन करके उनको भेजा, फोन भी किया, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही। उन्होंने एसपी को फोन करना चाहिए। एसपी जो है बुलढाना जिला का जो एसपी है, उनको फोन करना चाहिए। उन्होंने तुरंत वो उनके एक्शन को वो लोग मानेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है सर। पाठक साहब, अभी जो घर है वो घर आपने कहा कि जला डाला, यानी ये विष्णु शेलके ने जला डाला या किसने जला डाला? जो बेड़े फैमिली के घर है जहां पर वो सब रहते थे पूरे फैमिली, वो आज के तारीख में क्या जला हुआ है कि अभी है? और जो ये फार्म है, जो इनके जो खेती है 4 एकड़, वो इनके हाथ में है कि विष्णु शेलके के हाथ में है? तो अभी जो ये जो फैमिली है बेड़े फैमिली के पास खुद का घर नहीं है और वो खेती भी शेलके फैमिली ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। और ये जो एक एट्रोसिटी जो लगी थी, एट्रोसिटी लगने के लिए जो लड़का शरद बेड़े जो लगातार कोशिश करता था और एट्रोसिटी के ऊपर उसने मेहनत करके जो एट्रोसिटी वहां पे लगने का जो काम हुआ, उसी को अंजाम देने के लिए कि अगर यही लड़का ज्यादा हमको सता रहा है, इसने एट्रोसिटी लगाने का काम किया, इसलिए इसको ही खत्म कर देंगे तो ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा और कोई हमको फाइट करने के लायक नहीं रहेगा। ये औरत अकेली क्या कर लेगी? इसलिए वो शरद बेड़े को काउंटर अटैक इन्होंने किया है। और वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद जैसे गाड़ी गिरती है, उसी वक्त वो शेलके वहां पे कैसे पहुंचा, इसके लिए हमारा उनके ऊपर ये जा रहा है कि ये इसकी जवाबदार है। नहीं, पत्थर तो लगा था। आपका कहना है कि जब बाइक धीरे धीरे जा रहा था, मोटरसाइकिल, 3 लोग साथ में बैठे थे, तो कोई पत्थर से अटैक हुआ उन पर, दिस इज व्हाट यू से।
तो उसके Yes, sir. बाद उन लोग गिर जाते हैं और फिर जो भी होना वो हो जाते हैं। तो बराबर है। तो जस्ट उसके वो स्पॉट पर गिरने के बाद अगला आदमी गिर जाता है, तीनों गिर जाते हैं। पीछे वाले को जैसा वो दिखता है, बात करता है वो लड़का, कारभारी खरत नाम का लड़का, वो विष्णु शेल्के से बात करते हैं कि आप हमको बचाइए, हमको हॉस्पिटल में लेके जाइए, हमको वो दोनों को बहुत मार लगा है। तो कोई पूछता नहीं, वो तो निकल जाते हैं, बोलते नहीं नहीं अभी आप देख लो, मुझे नहीं पता है। और तो हमारा ये कहना है, हमारा बोलते हैं ना कि एविडेंस वहां पे है, जहां पर पत्थर लगा, बाइक गिरी और उसी तुरंत बाद विष्णु शेल्के स्पॉट के पास पहुंचे। उनके भाई का एक छोटा गोठा वहां पे बाजू में है, वहां से इन्होंने पूरा काम ये अटैक किया है, ऐसा हमारा आरोप है उनके ऊपर। लेकिन जहां तक के लोकल मतलब स्थानीय लोग जो हैं उनका क्या कहना है सुंदर पड़मुख जी? वो तो इन सब लोगों को जानते होंगे, वो लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते सर। बाकी जो दलित फैमिलीज हैं वहाँ पे, बाकी अन्य फैमिलीज जो हैं उनका क्या कहना है वहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कि आज की तारीख में जैसे आप आए हैं आगे, जिस गांव से ये लोग आते हैं जो जीजा माता का मायका है जैसा आपने बताया, उस गांव में भी काफी दलित होंगे, उस गांव में भी दलित संगठन भी होंगे, उनके नेता भी होंगे। क्या उनमें से कोई आगे नहीं आया हस्तक्षेप करने के लिए? उनमें से भी केदार जी बोल के महाराष्ट्र के जातीय अत्याचार के ऊपर काम करने वाले बड़े लीडर है, उन्होंने भी वहां पे जाके देखा, वहां पे विजिट भी किया। हॉस्पिटल में भी, ये पुलिस स्टेशन में भी वो लोग थे। एक हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क भी वहां पे थे, कश्यप ली बोल के, इन्होंने भी कोशिश किया कि एफआईआर होना चाहिए, लेकिन उनको सबको बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो फिर भी ये लोग किसी को नहीं दिखा रहे। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप बॉडी लेके जाइए, बॉडी लेके जाओगे तो आपका एफआईआर होगा। जब बॉडी लेके आए तो पुलिस वाले बोल रहे कि तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद में हम लोग एफआईआर लिखेंगे। तो ये सब मामला कारण बताकर इन्होंने टाइम निकाला है, एविडेंस मिटाने का काम इन्होंने किया है। हमारा ये स्पष्ट आरोप है कि वहां के लोकल पुलिस स्टेशन वाघ बोल के है और उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी कर्मचारी जो है, इन्होंने वो स्पॉट का मतलब ये जानबूझकर ये एफआईआर करने में लेट करना, एविडेंस मिटाने का काम करना, एफआईआर लेने के लिए लेट करना, ये सारा काम, एविडेंस अगर नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे? क्योंकि बॉडी तो ये लोग जला दिए, बॉडी तो ये लोग जला दिए जी, अभी कैसे एफआईआर होगा? लेकिन दिस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। मतलब मेरे लिए और प्रदीप जी I के want to लिए know, सर, जब ये मोटरसाइकिल जा रहा था वो पूरा सुनसान एरिया था, कोई विटनेस भी था, किसी ने कुछ देखा कि ये सब सड़क पे- अटैक हो रहा है? जी। ये जिस प्रकार से एक पत्थर आके मोटरसाइकिल पे तो फेंका जाता है और वो पत्थर लगने से मोटरसाइकिल गिर जाता है और तीनों लोग गिर जाते हैं। उसके बाद जो हुआ, कोई विटनेस था पड़मुख जी इस पूरे क्षेत्र? बिकॉज इस क्षेत्र में कोई रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे रात का समय था। अच्छा, गांव ये में लोग तीनों जी, जन दुरुस्त। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। तो रात में क्या होता है, गांव में लाइटिंग ना होने की वजह से आजू बाजू में पूरा सन्नाटा होता है। और बताया जा रहा है कि ये जो विष्णु शेल्के के चचेरे भाई का यहाँ पर घर था बाजू में, जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, विष्णु शेल्के के चचेरे भाई का घर बाजू में है, वो रास्ते के बाजू में है, वहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट एक का अगर मौत होता है तो दोनों जन विटनेस वहां पे है। एक विटनेस अभी घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में एडमिट है और दूसरा जो बाइक पे बैठा हुआ तीसरा पीछे का जो लड़का है, वो सारी चीजें बताता है कि जैसा एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त विष्णु शेल्के स्पॉट पे थे जी। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमको दवाखाना लेके जाइए, तो उन्होंने दवाखाना लेके नहीं गए। और वो लड़के को भी ज्यादा मार लगा था, हाथ पे लगा था, गिरने की वजह से और भी कुछ लगा। तो वो भी वो जो शरद बेड़े जब गिरा था उसको देखने को जब गया तो उसके सर को और मार देखकर, वो खून देखकर वो बेहोश हो गया। तो पड़मुख और साहब आगे फिर उसने जी। उठ के गांव में सबको फोन किया कि अरे ऐसा हुआ,
हम लोग को यहाँ पे पत्थर लगा और हम लोग गिर चुके हैं और हमको हॉस्पिटल में लेके जाना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों भी सीरियस है। तो पाठमुख साहब, वहां पर जो बाकी दलित परिवार हैं वो भी सहमे हुए होंगे, वो भी काफी डरे हुए होंगे, वो सब भी। बिल्कुल, ये शेल्के फैमिली जो है ये साहूकार है, ये लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, ब्याज पे पैसा देकर कागज लिखकर अनपढ़ गवार लोगों से लिख के लेते हैं, इनको पता भी नहीं रहता है कि इसमें क्या लिखा है, और ना उनको एक छोटी सी चिट्ठी देते हैं, लिखने के बाद एक छोटी सी चिट्ठी देते हैं कि ये व्यवहार हुआ, ये चिट्ठी 8 दिन के बाद भी ढूंढे तो दोबारा मिलेगी नहीं, ऐसी छोटी सी चिट्ठी पे वो व्यवहार लिख के देते हैं और वो बाद में वो चिट्ठी गुम जाती है। ये इंटरेस्ट भरते हैं, मुद्दल भी देते हैं, पूरा पैसा भी पे कर देते हैं, फिर भी ब्याज, वो साहूकार का जो कर्जा है कोई भी खत्म नहीं होता है, और इस बहाने चक्रव्याज ब्याज, ब्याज का ब्याज, चक्रव्याज ब्याज ये लोग लगाकर वो साहूकार पूरी जमीन हड़प लेता है, और जमीन अगर मांगने गए, दोबारा अगर डिमांड करने गए तो फिर इस तरीके से अटैक करते रहता है। ये सिलसिला पूरे गांव में है। वेरी प्राउड ऑफ यू सुंदर पाठमुख जी। यस सर। सुंदर पाठमुख जी, हम बड़े गर्वान्वित हैं कि आपने ये केस को लिया और इस प्रकार आप इसको आगे लेके जा रहे हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि अगले दिन अटैक आप पर भी हो सकता है। जिस प्रकार आप इस फैमिली के लिए लड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आप इसी तरह लड़ते रहें, और हम अपने दर्शकों को, जैसे हम लोगों ने कल आप सब लोगों को अश्योर किया था, वी विल नॉट लीव दिस सब्जेक्ट टिल सच टाइम एज दिस फैमिली एक्चुअली गेट्स जस्टिस। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। सुंदर पाठमुख जी, एक बार फिर थैंक यू सो मच। एक बार फिर वी आर रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। व्हाट यू आर डूइंग इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, बट यू आर डूइंग इट, एंड फॉर दैट we are not only proud of you, we are also grateful to you. Thank you so much, Sundar Pathmuk ji. Keep up the good work. Thank you so much. थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार और वंदे मातरम. Thank you. Doesn't this sound like a horror story? It is. I mean, It is absolutely shocking that these things are happening. And if you see the marks on the face of the Mr. Sharad Bede, you will find that it doesn't look like accident marks. It is a mark of attack. And also his body was Murderous found. attack. He was sitting in the middle, and his body was found about 15 meters Yes, away bilkul. from where Yes, the alleged accident took place. So naturally, the family feels that he was murdered. You got marks across the face. You know, how Yes. can this happen in an accident? It's impossible. That in an accident you have a straight hit on the body. You And don't have, not only you that, don't have knife marks on your Pradeep face ji, like this. 65-year-old, 70-year-old woman, Yes, lone yes. woman, attacking 37 people. 37 people. I mean, 37 लोग जो you हैं, don't find it Hindi movies में भी होता नहीं कि एक lady इतने उनके लोगों को- घर में, उनको घर को जला दिया, उनकी पूरी खेती को कब्जे में कर लिया, और ये कहा कि इस 65 के 70 साल की औरत ने हम पर हमला किया है, और पुलिस वो FIR भी रिकॉर्ड कर लेती है और उसको 15 दिन के लिए जेल भी भेज देती है। And she has to fight. She has to fight in court to get herself acquitted from the charge which has been placed against her under section 307. I mean, what is going on here? This is awful. Right now, at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, we have our old friend, Mr. Lakshman Hake. Lakshman Hake ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भारत। भारत माता की जय। लक्ष्मण आगे साहब, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, इसके पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ा लाइन सुना जी सर, एक बड़ा अजीबोगरीब सनसनीखेज मामला सामने आया है। मतलब मेरी तो समझ के बाहर, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी पिक्चर हुआ करती थी ना, या मराठी पिक्चर हुआ करती थी, साहूकार से पैसे ले लिए, उसके पैसे वापस भी दे दिए, उसके बावजूद जो साहूकार है वो आपकी जमीन को टेक ओवर कर रहा है, उसने आपके घर को जला दिया और आपके घर के बेटे को भी मार दिया, उसकी बहू को भी विधवा कर दिया, और तो और छोड़िए, 65 और 70 साल की जो अधेड़ उम्र की जो औरत हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने अंडर सेक्शन 307 लगा दिया। मतलब ये क्या है सर? सर गांव में, हर एक गांव में थोड़ा मेरा आवाज आ रही है आपके? बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है। हाँ, तो गांव में जो देहाती लोग हैं
वो उधर जो साहूकारी चल रही है, जी मैं पूरे जवाबदारी से आपको आपके आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। वो जो साहूकार है, वो साहूकार गांव के प्राइमरी टीचर और वो जो माध्यमिक स्कूल्स रहते हैं, उनके टीचर्स लोग हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा साहूकारी गांव में जो हो रही है ग्रामीण भाग में, ये महाराष्ट्र रहने दो, पूरा देश रहने दो, उनको एक फिक्स उत्पन्न रहता है, सैलरी रहती है, और वो लोग एक बाजू गांव में पढ़ाई करने का काम करते हैं और दूसरी बाजू गांव में साहूकारी करने का काम करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा साहूकारी करने वाले लोग ये स्कूल टीचर रहने दो, तलाटी रहने दो, ग्राम सेवक रहने दो, ये जो नौकरदार लोग हैं, जिनके ऊपर देश बिल्टअप करने की, देश का पाया मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वो सारे लोग साहूकारी में उनमें से ज्यादा लोग हैं। कई लोग गुंडे हैं, कोई लोग 2 नंबर वाले करने वाले लोग हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा साहूकारी तो इन पढ़े लिखे लोगों से हो रही है। और वो लोग, वो जो पैसा देते हैं ब्याज से, जी। तो जमीन सिर्फ नोटरी नहीं करते, पूरा रजिस्ट्री करते हैं, पूरा। और अगर वो आदमी उनका ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज और 5%, 10%, 20% जो कुछ रहता है, अगर नहीं आया तो वो जमीन वापस नहीं देते। ये तो फैक्ट है। ये बहुत बड़ा, यहाँ पर तो वो जो बोरोवर है वो खुद मर जाता है, उसका घर जलाया जाता है, उसका लैंड जो है वो ओनर एक है विष्णु शेलके करके, जो साहूकार है, उसने अपने पास रख लिया। और जो आपने कहा कि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सर्कुलर इंटरेस्ट है पूरा, वो चार्ज इतना कर दिया है कि वो मुद्दल गया, हर चीज गया, बोले रेफ्यूज, बोले पूरे पैसे। तो ये तो आपका कहना है साहब, बिकॉज आप इस विषय में पूरे महाराष्ट्र के दौरा इसलिए किए हो, आपने छोटे छोटे गरीब दलित फैमिली के ऐसे इश्यूज अपने लिए, एक बहुत बड़ा सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है। जिम्मेदारी के साथ मैं अभी आपके सामने एक बात रखता हूँ। मैंने लास्ट बार भी एक वन टाइम मैंने आपको बोल दिया था, ये जो जमीन धारणा, ये जो लोग हैं, ये लोग विजेएनटी से आते हैं, SC ST से आते हैं, जी। जिनके पास उपजाऊ जमीन, मतलब इरिगेटेड जमीन नहीं रहती है, और उनका जमीन वगैरह तारण बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं बैंक के भाषा में। ये लोग अगर बैंक में कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, किसी कोऑपरेटिव बैंक में जाते हैं, ये हमारे देश में, हमारे सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में इन लोगों को कौन से भी बैंक, कौन से भी कोऑपरेटिव बैंक इनको 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का लोन नहीं देते। अगर लोन देना है तो उनको सैलरीज वाले पर्सन गारंटर मांगते हैं, और गारंटर नहीं मिलता है उनको, और इन लोगों को हमारे सिस्टम की तरफ से बैंक का लोन नहीं मिलता। और जिस गांव में, जिस कम्युनिटी में, जिस प्रवर्ग में जिनको बैंक का लोन नहीं मिलता है, वहां से साहूकारी चालू होती है। मतलब ये ब्याज से पैसे देना, ब्याज से पैसा लेना। और ब्याज से किस चीज के लिए ये लोग लेते हैं? तो एक तो शादी करने के लिए लेते हैं, नहीं तो बीमारी पड़ने के बाद, बहुत जी। बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, बहुत बड़ी आपदा है, इन 2 कारण से इन सब लोग ये ब्याज से पैसा लेते हैं, और अपनी खुद की जितनी भी जमीन रहती है वो सब जमीनें इनके नाम हो जाती है। ये तो फैक्ट है, ये तो हमारी सिस्टम फेल है। ये सब समस्याओं पे सामाजिक न्याय तो आज भी आधे से ज्यादा लोगों को आज भी सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। जो जहां भी सामाजिक न्याय मिलता है, चाहे लोकल बॉडीज में हो, चाहे एजुकेशन में हो, अगर एक आध दूसरा एग्जाम्पल सामाजिक न्याय का लाभ लेते हुए आगे आता है, तो भी उनके ऊपर आज भी उनको देखने का तरीका अलग रहता है, उनको साइकोलॉजिकल उनके ऊपर प्रेशर रहता है, और एक आदमी और एक मानवता की दृष्टिकोण से उनको देखा नहीं जाता है। ये फैक्ट है, आज भी हमारे देश में ये फैक्ट है। लेकिन साहब- लक्ष्मण आगे साहब ये बताएं, आगे साहब, प्रदीप जी, एक सेकंड। यस ये जो आपने साहूकारी की बात करी, बहुत पहले, पिछले 15 साल हो गए, शायद 15-16 साल हो गए हैं, ये अनाउंसमेंट हुई थी कि पूरी साहूकारी के ऊपर बैन लग गया है हर जगह पे। जिसके पास वो मनी लेंडर की टिकट नहीं होगी सरकारी, वो पैसा लेंड नहीं कर सकता है, और उसका लेंडिंग रेट जो है वो 5% से ऊपर नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ये सब कंडीशंस लगाई गई थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं, और अभी अभी ये जो केस सामने आया है, और भी केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है
कि वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कोई रोकने वाला नहीं है। साहब, मैं मेरे मेरे महाराष्ट्र की मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। 2000 शायद 2011-12 की बात है। हमारे महाराष्ट्र में तत्कालीन गृह मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के वो स्वर्गीय आर पाटिल नामक राष्ट्रवादी के गृह मंत्री थे। उन्होंने साहूकारी के खिलाफ बहुत बड़ा एक रूल्स महाराष्ट्र में लाए थे, जी। मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन आज कहीं पे भी नहीं दिखता है। इसका कारण यह है, हर गांव में जो साहूकारी करने वाला आदमी है उसका पॉलिटिक्स पे बहुत उनका भूमिका रहती है। और वो ये इनकी भूमिका रहते हुए कोई पॉलिटिकल लीडर रहने दो, एमएलए रहने दो, कोई पुलिस स्टेशन का पीआई रहने दो, रूरल गांव में जो ये इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। और इन्फ्लुएंस रहने के बाद ये जो ब्याज से पैसा लेने वाला जो कॉमन मैन है, जो दलित है, जो एससी एसटी है, जो विजेएंटी है, ये लोग उनके अपोज में पुलिस स्टेशन में जाके केस दर्ज नहीं करते हैं, अन्याय सह लेते हैं ये सब लोग। ये तो फैक्ट है। ये साहूकारी के अगेंस्ट जो हमारे महाराष्ट्र का जो कायदा है उसका अगर कोई स्टेटस देख लिया महाराष्ट्र में, उनका केसेस ही नहीं आती है और ये ऐसा ही चल रहा है। और जहां पर केस आता है वहां पर ऐसे मर्डर हो जाता है, मर्डर हो जाता है। बहुत बड़े बड़े केस में महाराष्ट्र में ये बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, हम बता सकते हैं। आप बहुत लोगों के, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल एक दूसरा एक्टिविस्ट रहता है तो उनको उड़ाया जाता है, उनकी जान ली जाती है। कोई आरटीआई एक्टिविस्ट रहता है तो उनकी भी जान ली जाती है। ऐसा तो हो रहा है और है, फैक्ट तो फैक्ट है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है सर? इसको खत्म करने का तरीका ये है, जिस दिन तक इस देश में, इस मेरे राज्य में, जिस दिन तक वोट बैंक सामने रखते हुए हमारे लीडर्स, हमारा न्याय मंडल, हमारा कार्यकारी मंडल और हमारा प्रशासक, जिस दिन तक ये वोट बैंक और निवडणूक ये केंद्र बिंदु रखते हुए हमारी सिस्टम जिस दिन तक चलेगी, उस दिन तक ये रूल्स रहेंगे, ऑन पेपर रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो आके साहब, ये एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी ने कल कैबिनेट थे, बोले कि हमने वो कौन सा वो नमो शेतकरी योजना लेके आए हैं, 6,000 रुपये और लोगों को मिलेगा। पीएम किसान से 6,000 और मिल रहे हैं। 1% बीमा जो है फार्मर्स के लिए, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस प्रकार से 1 ही रुपया भरना। तो और फिर अलग अलग चीज कल उन्होंने कैबिनेट डिसीजन से लोगों को सुनाए। तो बट क्या ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या सोशल जस्टिस करने के लिए कुछ कदम कैसे उठा सकते हैं? बिकॉज आपने कहा कि आर पाटिल के बाद जो कानून बनाए थे वो धूल चाट रहे, अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट तक नहीं किया। तो साथ मैं आज से पहले 6 दिन मैं रूरल मतलब सांगली डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्टेट बैकवर्ड कमीशन का शासकीय दौरा था। इस दौरे के अंदर मैंने सोशल जस्टिस के बारे में, ओबीसी, विजेएंटी, एसबीसी के बारे में, जितने भी आर्थिक विकास महामंडल है, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी एजुकेशन के बारे में जितने प्रोग्राम्स हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने अनाउंस किए हैं, उसका मैंने आढ़ावा लिया है। मेरे पास 400 पेजेस का आढ़ावा है विथ साइन। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं कहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसमें से सिर्फ मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति और जो आश्रम शालाएं हैं उनका शासकीय अनुदान, ये 2 चीजें छोड़ के और कौन सी भी योजनाओं को 2017 से हमारे महाराष्ट्र में 1-2 करोड़ रुपए का निधि अलॉट नहीं हुआ है। 2017 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद कोरोना पेंडेमिक पीरियड, इस पीरियड में ये विजेएंटी, ओबीसी, एससी, एसटी जो शहर में स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिस दिन कोरोना का महामारी शुरू हो गया, उस दिन से ये लोग हर तरफ गांव की तरफ चले गए और उनके सामने इतनी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, मगर उनके साथ सामाजिक न्याय से बड़े बड़े घोषणाएं हो जाती है, मगर उनको लाभ नहीं मिलता है। ये जो सामाजिक न्याय की बात है, आज भी हमारे देश की आधी जनता हमारे विकास में, हमारे एजुकेशन में,
हमारे जीडीपी वगैरह सब इकोनॉमी में, अगर ये लोग हमारे विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीडीपी 7-8% से आगे कैसा जाएगा? ये लोग रोजंदारी के लिए, ये लोग खाने पीने के लिए, ये लोग घर के लिए अगर झगड़ते हैं तो ये ग्रोथ कैसा होगा इस देश का? अगर आधी आबादी जो हमारे महाराष्ट्र में 12 बलूतेदार 18 आलूतेदार बोलते हैं उनको, जो परंपरा से जो हमारा उनकी कारीगरी से वो काम करते आ रहे हैं, इन सब 12 बलूतेदार 18 आलूतेदारों को कौन सा भी योजनाएं बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स काम नहीं करती है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छा सिविल है, उनको ही बैंक लोन मिलता है और वो ही तरक्की कर पाता है। जिन खेती करने वाले किसान के पास उनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, उनको बैंक लोन भी नहीं देती और कौन सा निधि भी नहीं देती और कौन सा गवर्नमेंट का लाभ भी नहीं देती। ये हमारे महाराष्ट्र का अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे देश में क्या सिचुएशन होगा? हाके साहब, मगर हम चिंतित हैं, यहाँ पर बजाज साहब भी बैठे हैं, फार्मर्स किसान के इश्यूज को लेके। अभी आपका कहना है ठीक है, नेशनलाइज बैंक्स नहीं दे रहे, आपके कोऑपरेटिव संगठन, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मूवमेंट है, सबसे बड़ा मूवमेंट है पूरे देश में, और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी आपको लोन नहीं, फार्मर्स को अगर हेल्प नहीं मिलेगा तो कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सिर्फ साहूकार फिर वही चला रहे, साहूकारी चला रहे कोऑपरेटिव मूवमेंट को। यस सर, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। ये सोलापुर डीसीसी बैंक है। ये सोलापुर डीसीसी बैंक में 11 लोग ऐसे हैं, 11। ये 11 लोगों ने ये डीसीसी बैंक का लोन, एक आदमी का लोन 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, सिर्फ 11 लोगों ने ये सोलापुर डीसीसी बैंक का लोन लिया है। और बहुत सारे लोगों को 1 लाख का लोन भी नहीं होता। जो इस डीसीसी बैंक से जो लास्ट मोमेंट में खड़ा है किसान, उनको ये लोन नहीं मिलता। वो कामगार को लोन नहीं मिलता। एक कोई गाय का गोट फार्मिंग कर रहा है, उनको लोन नहीं मिलता। मगर एक ये आदमी वो प्राइवेट शुगर मिल चला रहा है, प्राइवेट शुगर मिल खड़ा कर रहा है, उनको 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और ये सब बैंक करप्ट है। ये सब लोग पैसा नहीं भर रहे हैं। ये फैक्ट है। मैं पूरे दावे के साथ, पूरे सब क्या एविडेंस के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूँ। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक, तो अगर ऐसा कोऑपरेटिव बैंक रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंक करेगी, तो सामान्य आदमी कहां जाएगा जो बहुत सारी संख्या है उसकी। तो आपका कहना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट भी जो महाराष्ट्र इसमें गर्व करते हैं, वो भी एक नॉन टेकिंग चीज है, बिकॉज जिसको सहायता मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए, उनको हेल्प मिल ही नहीं रहा है। जैसे आपने कहा कि नहीं मिल रही है साहब। आप जो बैंक के गिला के 11 लोग को करोड़ों रुपए का लोन मिला है, और जो जेन्युइन शेतकरी है जो फार्मिंग करना चाहता है उसको 1 लाख का लोन भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है। और हमारे देश की जो समाज व्यवस्था है, ये समाज व्यवस्था में मतलब इकोनॉमिकल सेक्टर में अगर जात का इन्फ्लुएंस है, वो एनटी से आता है क्या, वो धनगर कम्युनिटी से आता है क्या, बेरेड कम्युनिटी से आता है, वो सालों साल बेरेड कम्युनिटी का आदमी अगर एक आधा दूसरा प्रस्ताव लेके आएगा, वो जो बार्बर है, जो नाभिक है, वो 1 लाख रुपए का प्रस्ताव लेके आएगा, तो बैंक का चेयरमैन, बैंक का डायरेक्टर उसे पूछता है कि तू बार्बर है और एक अरसा और एक कैंची और एक साबुन लेने के लिए तुझे 1 लाख की क्या जरूरत है? जी। 1 लाख का प्रोजेक्ट क्यों लेके आया इधर? किस चीज के लिए लगता है आपको 1 लाख रुपए? वो चाहता है मेरा दुकान अच्छा होना दो, वो चाहता है मेरे दुकान में कोई एसी बिठाना है, मेरे दुकान में अच्छे कस्टमर आए, इसलिए मुझे थोड़ा फर्नीचर वगैरह करना है। तो उनको भी कोऑपरेटिव बैंक, तो कहने का मतलब ये हुआ लक्ष्मण हाके साहब कि जो कोऑपरेटिव बैंक मूवमेंट है वो भी अब कास्टिस्ट हो गई है, कास्ट बेस्ड हो गई है। कास्टिस्ट है। ये देश में हजारों सालों से शिक्षा रहने दो, इकोनॉमी रहने दो, कोई बहुत बड़ा एक दूसरा प्रोजेक्ट रहने दो, शुगर फैक्ट्री रहने दो, शुगर फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर्स किसके देना है, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, वो शुगर का ट्रेडिंग किसको देना है, इसके ऊपर सब
क्लोज रिलेटिव्स लोगों को ये सब मिलता है। लेकिन मुझे यहां पर एक बात कहनी पड़ेगी साहब, लक्ष्मण आगे आप सुनने वाली बात है, सुनिए। जैसे आपको मालूम है मैं जर्नलिज्म बहुत सालों से हूं। मैंने सिर्फ एक लीडर को देखा है अभी तक, एक लीडर जिसने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर चुनावी टिकट का बंटवारा नहीं किया, चुनावी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है कभी भी, और उस शख्स का नाम था बाला साहब ठाकरे, और कोई नहीं। महाराष्ट्र में कोई नहीं, और उन्होंने आज तक किसी आदमी की जात नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। क्या है तेरे को उधर से लड़ने का है, ये ले पकड़, चल दिया तेरे को, अब जीत के आ। मैंने खुद देखा है सर। यस। तो वो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि वो बाला साहेब ठाकरे अगर शिवसेना को इतना बड़ा कर सकते थे बिना जात के आधार पर, तो बाकी सब लोग क्यों नहीं कर सकते? सर ये मैं आपको बता दूंगा, वंदनीय शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना है, उनका जो स्ट्रक्चर है, आपने जो बात कही उसके ऊपर ही चलती है। इसकी वजह ये जो शिवसेना का जो एरिया है, वो जो पॉकेट्स है, बंबई है, ठाणा है, औरंगाबाद है, पुणे है, कोंकण है, ये सब एरिया में, ये हमारा औरंगाबाद अभी संभाजीनगर नामकरण हुआ है उनका, ये औरंगाबाद का जो खासदार है, एमपी है, एक बुरुड़ कम्युनिटी का, उनका बुरुड़ मतलब वो टोपली बिनने वाला वो बुरुड़, एक बुरुड़ आदमी ये देश की संसद में 6 बार चुन के आया है शिवसेना के टिकट के ऊपर। मैं आपको ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर वगैरह मैंने जो बात कही, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र, जो मध्य महाराष्ट्र है, जो मराठवाड़ा है, जो खानदेश है ऊपर का, ये सब विदर्भ है। ये जो गांव में जो है, गांव में जहां पे भी शुगर फैक्ट्रीज बहुत सारे हैं, जहां पे भी इरिगेटेड लैंड्स है, जहां पे भी नदियों का दुआब है, वहां पे ये जो हमारी समाज व्यवस्था है, वो स्टेप्स की ऐसी बहुत सारी स्टेप्स है हमारे समाज व्यवस्था में। और मैंने जो बात कही वो भी फैक्ट है जी। तो you want to continue? Yes, I want to continue this. तो आपको लगता नहीं है कि अब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को वही बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने आज तक कभी जातिवाद के बारे में कभी उन्होंने ही हैज नेवर केयर्ड फॉर इट। जी साहब, आज भी सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे आज भी उनका जो बाला साहब ठाकरे साहब का जो भी एजेंडा था उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। आज भी शिवसेना में जाति के आधार पर ओबीसी सेल नहीं है, विजेएनटी सेल नहीं है, दलित सेल नहीं है, ऐसा सेल शिवसेना में नहीं है। जो भाजपा में है, जो एनसीपी में है, जो कांग्रेस में है, और शिवसेना पार्टी का जो लीडरशिप है, चाहे स्पोक्स पर्सन रहने दो, चाहे उपनेता रहने दो, जिला प्रमुख रहने दो, तालुका प्रमुख रहने दो, आज भी कास्ट सिस्टम हमारे शिवसेना में अलाउड नहीं है। आज भी नहीं है साहब। ये ओबीसी का है और ओबीसी का लीडर बनाओ नहीं। मैं एक धनगर कम्युनिटी का, भेड़ बकरियां चलाने वाले कम्युनिटी से मैं आता हूं, मगर शिवसेना ने मुझे मुख्य प्रवक्ता चुन लिया है। मैं एमएलए नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा जो पॉलिटिकल जो वेपन्स रहते हैं निवडणूक जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो कौन सा भी वेपन्स नहीं है, मगर मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, और ये झगड़ने वाला आदमी है, इनको हमारे पार्टी का प्रवक्ता बनाते हैं। ये मैं खुद मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। फैंटास्टिक, जबरदस्त प्रदीप जी। तो आज हके साहब जिस प्रकार से सीएम और फडणवीस साहब ने अहमदनगर को अहिल्या नगर घोषित कर दिया है, टोटल घोषित कर दिया है, क्या इनके पीछे पॉलिटिक्स है, इलेक्शन कैंपेन? बिकॉज ये देव फडणवीस नामक ये जो डिप्टी सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, मैंने 9 दिवस 2014 में मैंने 9 दिवस अनशन किया था बारामती में। ये नगर के पास ही बारामती आती है, शरद पवार साहब की गांव रहता है बारामती। मैंने 9 दिवस अनशन करने के बाद ये देव फडणवीस के हाथ से शरबत लेके मैंने वो अनशन छोड़ दिया था। बहुत लाखों लोग बारामती में हमने इकट्ठा किए थे। उस दिन उन्होंने धनगर कम्युनिटी के एसटी आरक्षण, फर्स्ट कैबिनेट में एसटी आरक्षण दे देंगे ऐसा आश्वासन दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने
कम से कम 10 या 15 सभा में महाराष्ट्र में धनगर समाज को हम एसटी आरक्षण देंगे, ऐसा वादा किया था। मगर आज 9 साल पूरे हो चुके हैं, ना धनगर समाज के आरक्षण के बारे में कोई कमीशन बैठा है, ना मैं स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर हूं, ना हमारे पास एक लाइन की कोई नोटिस आई है, ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। 2014 में ये देव फडणवीस ने ये धनगर कम्युनिटी का मतदान आकर्षित करने के लिए सोलापुर यूनिवर्सिटी को पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होळकर का नामकरण कर दिया और 2019 में वो और निवडणूक जीत ली और आज 2024 में नगर डिस्ट्रिक्ट का नामकरण पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होळकर का नामकरण कर दिया और 2024 का उनको इलेक्शन जीतना है। ये सिंबॉलिक राजकारण है, ये पॉलिटिकल है। मगर धनगर कम्युनिटी को जिन उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का निधि देने का वादा लास्ट बजटरी अधिवेशन में किया है, उनमें से 1 करोड़ भी आज भी धनगर कम्युनिटी को दे नहीं पाए हैं। तो इस बार क्या धनगर कम्युनिटी जो है इस वादे पर विश्वास करेगी? नहीं करेंगे, हम तो वो प्रयास करेंगे। 1 करोड़ भी, आज 5 महीने हो चुके हैं बजटरी अधिवेशन हो गए महाराष्ट्र का, आज भी ये धनगर कम्युनिटी को 1 करोड़ रुपए भी, तो 1 करोड़ रुपए का जीआरबी इस महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। ये धनगर कम्युनिटी 60-70 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में 40,000, 50,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक वन कम्युनिटी का मतदान इस महाराष्ट्र में है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर भी धनगर कम्युनिटी के कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, तो चुन के आने की बात तो अलग हो गई। वैसी ही बात एनसीपी की है, वैसी ही बात कांग्रेस की है, वैसी ही बात भाजपा की है। आके साहब, आज का सभा तो बहुत जबरदस्त सभा था, वो लाखों के भीड़ थे वहां पर। पडलकर जी तो एकदम खुश थे, वो पूरे स्टेज और वो पडलकर मेरे कलीग है, मेरे दोस्त है, और हम दोनों महादेव जनकर की एक जो छोटी सी पार्टी है राष्ट्रीय समाज पक्ष, उनमें से हम दोनों ने 15-16 साल इकट्ठा काम किया है। वो मेरे दोस्त है और मेरे से जूनियर है। और मैं ये आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने ये धनगर कम्युनिटी को इकट्ठा करके इस महाराष्ट्र में इन लोगों को एक पर्याय आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। मगर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को संधि मिलती है, दूसरी बार एनसीपी कांग्रेस को संधि मिलती है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को संधि मिलती है। मगर इस कम्युनिटी को ना कांग्रेस टिकट देती है, ना एनसीपी टिकट देती है, ना भाजपा टिकट देती है। सिर्फ विधान परिषद पे एक महादेव जानकर को लेते हैं, पूरे कम्युनिटी का वोट फसल जैसे अपने पार्टी की तरफ खींचते हैं। दूसरा, गोपीचंद पडलकर को एमएलसी देते हैं और उनका पूरा कम्युनिटी का वोट अपने तरफ लाते हैं। ये जो राजनीति है, वोट बैंक सामने रखते हुए, अगर वोट बैंक की राजनीति हो जाती है तो ये सामाजिक न्याय इनको कैसा मिलेगा? आज भी ये लोग स्थलांतरित है, आज भी इन लोगों का इस देश में 75 इयर्स में धनगर कम्युनिटी का एक भी आदमी इस देश की संसद में चुन के नहीं गया है। right. ये सामाजिक न्याय की बात है, हो सकती है, लेकिन अब जाएगा शायद। मैं तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाएगा और उसका नाम लक्ष्मण हाके होगा। मैं आपके साथ मिलेगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। पक्का दिख रहा है मुझे आपका भविष्य दिख रहा है। मुझे नहीं साहब, मुझे धनगर कम्युनिटी की बात देश के आगे नहीं लानी है। इस महाराष्ट्र में मैं अभी आपको बता देता हूँ, माड़ी साड़ी कोड़ी तेली हटकर धनगर सनगर वंजारी लोनारी गांव ग्राम व्यवस्था में जो बेरड़ बेडर रामुशी है, गांव व्यवस्था में जो परीट गुरव गड़सी है, हर एक आदमी इस महाराष्ट्र में ओबीसी कम्युनिटीज में 492 कास्ट है। इन लोगों का आज बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, उनका कभी ना एमएलए बन चुका है, ना कभी मेयर बन चुका है, ना कभी झड़पी अध्यक्ष बन चुका है, ना पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व उनको मिल रहा है। ये तो फैक्ट है। अगर मेरे पुरोगामी महाराष्ट्र की ये फैक्ट है, फुले शाहू अंबेडकर जिन्होंने इस महाराष्ट्र में जन्म लिया, इस महाराष्ट्र की अगर ऐसी फैक्ट है तो पूरे देश में क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं महाराष्ट्र के बाहर गया नहीं हूँ, अब कौन से मूवमेंट में भाग नहीं लिया हूँ, मगर महाराष्ट्र की ये फैक्ट है। लेकिन अब तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अगर महाविकास आघाड़ी इकट्ठे रहती है, अगर महाविकास आघाड़ी यूनाइटेड रहती है, एकत्रित रहती है 2024 तक,
तो बीजेपी और शिंदे सेना हो, जो भी हो, उनको जीतना बहुत मुश्किल होगा। एमवीए को हराना नामुमकिन है। वेरी सच बात है। मैं फिर दोहराता हूं कि इस महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी अगर इकट्ठा रहती है और जी जान से पूरे दिल से अगर भाजपा को एक समर्थ पर्याय खड़ा करती है, तो भाजपा को रूरल में पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा। मैं पूरे दावे के साथ में लगता है। फिलहाल लक्ष्मण आगे जी, आपके साथ बात करके इतना मजा आता है, मेरा दिल करता है आपसे बात करते रहो। लेकिन क्या है कि शो खत्म करना है, बट वन डे वील हैव अ लॉन्ग टॉक जस्ट विद यू। 1-1.5 घंटे का शो करेंगे सिर्फ इसी के ऊपर, ये 492 जातियों के ऊपर ये शो हम करेंगे। ये वादा है साहब। जाते जाते मैं कल मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में गया था। एक पारधी कुटुंब का घर, वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोगों ने उठाया था, मैं उधर गया, ऑन द स्पॉट गया। वहां पे पूरा तहसीलदार, कलेक्टर, सब पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट अधिकारी, सब लोगों को 14 गाड़ियां लेके मैं उधर गया और उधर महसूल के लोगों को सामने बिठाया और उस पारधी कम्युनिटी को 2 घंटे का जगह और उसको घर देने का ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए सब प्रशासन को मैंने ऑर्डर किया और उन लोगों को न्याय दिलवाया। ये मेरे पास वीडियो भी है, सिर्फ 2 दिन हो चुके हैं। जरूर भेजिए, प्लीज भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। प्लीज। यस, आपको साधुवाद, इस काम के लिए आपको साधुवाद, और आप इसी तरीके से काम करते रहें। लक्ष्मण हागे जी, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Always loved talking to this young Yes, man. He is full of energy. so full of sincerity. Above Yes. all, sincerity, honesty, and energy. To work for the Very poor honest and man. downtrodden. Very honest man. Right, and let's take some comments today. We didn't take them yesterday, if Yes. I remember correctly. Let's take them today. And in the meantime, this is for our viewers. Please do keep sending in your comments. आप अपने comments जरा भेजते रहें. We'll try and read out as many as possible. Can we have them on, please? Let's see what has come. This is, I think this is about Aarti Sathe, if I'm not mistaken. If corrupt opposition boycott, it is no doubt a good thing. That is what Sadashiv Bhatt says. I think Aarti Sathe ji should be very pleased. Let's continue, please. That's a second comment. It is always good for a ruling party if opposition remains immature and petty, but detrimental for democracy. Somebody called Mr. Bindra. Absolutely correct. Or maybe it might even be Miss Bindra, I'm not sure, but I don't disagree. What is the meaning of democracy? It is Abraham Lincoln who abolished slavery and gave equal rights. Once said, democracy is the government of the people, for the government and by the people. How BJP defines democracy? I thought he said something else, but that's right. For instance, Karnataka now has democracy. Yes. They said if the opposition wins, there is democracy. If the opposition doesn't, there isn't any. And there is somebody called some Maharaj. What is the first name? Shanti Maharaj. It's a disgrace of the woman, a foreigner heading Congress, and to bring forth a son so evil with such anti-national acts. A disgrace. That's what the person says. I don't really know what a foreigner means, because do remember, even Annie Besant was president of the Congress Party. A.O. Hume started the Congress Party, and we've had lots and lots of so-called foreigners who've been heading the Congress Party. Martha Odom says, our God reigns, all the evil forces will be pulled down. Right. Where did that come from? It's come, the Our God reigns, what does that mean? Taxpayer के पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है. Homeless people paying taxes for their luxury. That's what Rahul says. जी. And it's not Rahul Gandhi, by the way. जी. आगे चलें. This is on the Ajit Chavan's show. During Congress time, they had projected cost of this new parliament at 3,000 crores, and it got built in 925 crores. Just think of these corrupt politicians. Very interesting. Today was very interesting. Today the comments were very interesting indeed. And by the way, the subject that was there today was kind of... we had all good people who spoke very well. Yes, I know, and it's very disturbing. Especially that last bit.
about the caste Dalit murder in the Buldana district, absolutely terrible. How I wish it had not happened. And now I hope that person, the Bede family, will actually get justice. Yes. I hope that happens. फिलहाल आप अपने कमेंट्स भेजें, आप देखते रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें. एंड ऑल्सो टेल अस व्हाट यू वुड लाइक टू सी इन आवर शो. हमारे शो में आप और क्या देखना चाहेंगे और किन किन विषयों के ऊपर हम लोग डिस्कस करें. जो विषय आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं, आप क्या चाहेंगे कि हम लोग उसके बारे में क्या बातें करें, कौन से विषय हैं वो जो आप देखना चाहेंगे यहाँ पर. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.